شکریہ شکریہ آداب آداب صدر مجلس صدر مجلس مظفر صاحب، مظفر صاحب، ڈاکٹر شیخ عقیل صاحب، عقیل صاحب، ڈاکٹر شاہد اختر ڈاکٹر صاحب شاہد اختر صاحب اور ناظم اور ناظم مجلس بلکہ ڈیجیٹل مجلس ڈیجیٹل مجلس ڈاکٹر شفیع ایوب ڈاکٹر صاحب، شفیع ایوب صاحب، بہت ہی مختصر مختصر طور پر اور اردو رائٹرز کی اردو رائٹرز کی الیکٹرانک اور الیکٹرانک سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے ذمہ داری کی ذمہ اہمیت پر داری کی اہمیت پر کوئی بہت بڑا بہت بڑا علمی تحقیقی مقالہ نہ پیش کرتے ہوئے کچھ چٹکیاں لیتے ہوئے اپنی بات کو اس لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ NCPL کا یہ ایک بہت ہی عمدہ مادھیم ذریعہ یا میڈیم ہے جو آج ہند اور بیرون ہند پوری دنیا میں سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے۔ کل اس کے سیشن تھا اور ہم نے اس سیشن میں ہمارے وزیر تعلیم نشنک صاحب کے جو ان کی باتیں تھی، بڑی خوبصورت ہندی میں انہوں نے بڑے خوبصورت لہجے میں اردو کے تعلق سے جو پذیرائی کی اور جو کام NCPL کے ذریعے حکومت ہند کر رہی ہے، ہم اس کو سراہتے ہیں۔ میں اپنی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے۔ اردو کے ادبا، شعراء اور دانشوروں کی بڑی تعداد آج کے دور میں دھیرے دھیرے قلم، کاغذ، کتاب، سیمینار، کانفرنس، سمپوزیم، مباحثہ اور پرنٹ میڈیا سے نکل کر ایک نئے میڈیم کے ذریعے صوری و معنوی اعتبار سے زیادہ متاثر کن اور متحرک دور میں ہے۔ وہ حالات حاضرہ میں ڈیجیٹل دور میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے توسط سے ایک ایور لاسٹنگ امپیکٹ، ہمیشہ تاثر قائم رہنے والا کے ذریعے اپنی بات بخوبی ہمارے ادیبہ رکھ سکتے ہیں۔ اردو میں علماء کرام، مفتیان عظام، حتیٰ کہ مختلف مذہبی رہنماؤں نے اس چل چتر میڈیم کو چل چرتر کے معاملات، اخلاقی قدروں، مذہبی اور مسلکی معاملات کو اپنے اپنے دائرے میں ایک مؤثر کن میڈیا تو بنا دیا، لیکن ادیبہ کے مقابلے میں اردو کے شعراء شاعرات کی آڈیو، ویڈیو ریکارڈنگ، کیسٹ اور ویڈیو کلپ نے ایک اچھا خاصا مارکیٹ بھی بنا دیا، جو کسی بھی فنکار، غزل گائکی اور موسیقی کے مارکیٹ سے کچھ کم ضرور ہے، لیکن یوٹیوب پر گردش کی وجہ سے بعض کامیاب شعراء شاعرات اپنی چھاپ اور مارکیٹ بنا گئے۔ اب انہوں نے بھی ویبینار کا سہارا لے لیا ہے۔ اس تناظر میں اردو کے ادیبہ، اردو قلمکار، محقق، پروفیسر حضرات اور اردو کے صحافی اپنی ایک ہی ڈگر پر چلتے رہے۔ جب سیمینار بند ہوئے تو معدود چند نے ویبینار کے ڈیجیٹل الیکٹرانک ذریعے کو اپنانا شروع کیا۔ یہ بھی خوشائن بات ہے کہ جہاں کرونا کے اس کرب و بلا کے عالم میں ملنا جلنا، سننا سنانا سب بند ہو گیا، 2 گز کی دوری بھی طے ہو گئی، ویبینار ایک ایسا میڈیم بنا جس کے ذریعے دور دراز تک اپنی بات پہنچائی جا سکتی ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ 100-200 ناظرین والے کچھ افراد بھی اپنے ویبینار کے لیے قومی، عالمی اور شعراء آفاق کے بلند بانگ دعوے کرتے دیکھے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیشتر کوئی خاص تاثر پیدا نہیں کر سکے۔ شاید اس کی وجہ شخصی کینوس ہو۔ اس موضوع پر ایک اہم بات یہ کہنی ہے کہ اردو والوں کی جانب سے اس میڈیم کے ذریعے کوئی منظم یا اجتماعی کوشش نہیں کی گئی، جس میں ایک ہی پلیٹ فارم سے یوٹیوب، فیس بک یا ایک آزاد ویب سائٹ کے ذریعے قومی و بین الاقوامی مسائل میں مثبت رجحان کے ذریعے اردو کے رائٹرز، نئی نسل کی رہنمائی، خواتین کو سماج میں بااختیار بنانے، مذہبی و مسلکی معاملات سے ہٹ کر اخلاقی قدروں، صاف ستھرے سماج، مثالی برادری، کرپٹ اور مخرب اخلاق باتوں سے اجتناب کرنے والی باتوں، واقعات سے اردو والوں کو روشناس کرا سکتے ہیں۔ پہلے نانی اماں اور دادی اماں کے قصے سن کر نسل نو بیدار ہوتی تھی، اب نئی نسل ٹک ٹاک میں پڑی تھی۔ اچھا ہوا کہ حال ہی میں اس پر پابندی لگا دی گئی۔
سیاسی گلبازیوں کی منافرت نے بھی ان سوشل لوگوں سے فیک نیوز کا ایسا سلسلہ چلوایا کہ بعض چینل یا ماس میڈیا کے نام پر ماسک میڈیا بن کر مختلف سماجوں اور برادریوں میں نفرت پھیلا کر اپنا الو سیدھا کرنے میں کامیاب و مالا مال ہو گئے، جس سے قومی اساس کو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ وزیر تعلیم عالی جناب نشنک صاحب کے افتتاحی کلمات میں موصوف نے اشارہ کیا کہ اچھے لکھنے والوں کا فقدان ہے، اس سے اس ویکیوم کو پر کرنا ہے۔ اس تناظر میں ادبا، شعراء اور اردو لکھنے والوں کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ پرنٹ میڈیا، ادبی فورم، سماجی پلیٹ فارم اور ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے ذریعے اردو میں اصلاحی، تعلیمی، تدریسی، علمی اور ادبی معاملات میں کن باتوں کو مقدم رکھا جائے، کس طرح پرانی اور نئی نسل کو اردو میں وہ مواد، میٹر فراہم کیا جائے جو ملک، قوم، مسلم سماج، حتیٰ کہ برادران وطن کی بھی رہنمائی کر سکیں۔ ہندوستان دنیا کا واحد ملک ہے جو رواداری اور گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ہے۔ اس کی قدروں کو فروغ دینے میں اردو رائٹرز مزید ممد و معاون ثابت ہوں گے۔ ایسے حالات میں الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر ایسے لوگوں سے اجتناب بھی کرنا ہے جن کا جن جن کا املا غلط، جن کا جملہ غلط بلکہ وہ من جملہ غلط ہیں۔ سرکاروں سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اسے ایک والہانہ اور غیر سرکاری رضاکارانہ فرض سمجھ کر کیا جائے۔ آج سوشل میڈیا پر ہندی، اردو میں، حتیٰ کہ بعض چینل پہ جو کچھ بھی خبروں اور تبصرے کی آڑ میں پیش کیا جاتا ہے، ایسے عناصر اور منفی عوامل کے جواب میں مثبت پہلو رکھ کر کسی کو نشانہ بنائے بغیر، کسی کا جواب دیے بغیر، بلا اشتعال، بلا تفریق مذہب و مسلک و ملت، سوشل میڈیا سے اپنی مثبت سوچ کو ان سوشل مواد کی رد میں دور دور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کرونا کے دور میں ویبینار کی سونامی آئی ہوئی ہے۔ دنیا بھر کے شعراء کرام ملک اور بیرون ملک زوم یا گوگل میٹ پر اپنے پلیٹ فارم سے اپنا کلام پیش کر رہے ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ شاعرات بھی چھائی ہوئی ہیں۔ بیشتر یہ امر بھی قابل ستائش ہے۔ اردو کے ادبا، شعراء اور محقق بھی ایک اجتماعی پلیٹ فارم سے وقتاً فوقتاً ویبینار کے ذریعے اپنا کنٹریبیوشن پیش کر سکتے ہیں۔ آج کا یہ ویبینار NCPL کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے۔ مقالات کو دستاویزی صورت میں بھی شائع کیا جائے گا اور لوگ بڑی تعداد میں اسے ورچولی دیکھیں گے، اور دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ ڈائریکٹر NCPL ڈاکٹر شیخ عقیل احمد، چیئرمین ڈاکٹر شاہد اختر اور HRD وزارت سے میری یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ جس طرح فروغ اردو کے اس ادارے سے پروگرام، رسائل اور کتب کی اشاعت ہوتی ہے، یہی نہیں بلکہ غالباً کسی چینل سے اردو کا بہت مختصر اسپانسرڈ پروگرام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ہو سکے تو ایک الگ سے بجٹ مختص کر کے ہفتے میں 2-1 دن خالص پروگرام اردو کا پیش کیا جا سکتا ہے جو اسی موضوع کو تقویت دے سکے۔ اس سلسلے میں ابتدا میں کچھ ویڈیو کلپ، آڈیو کلپ اور ملک کے دانشوروں، ادبا، صحافیوں، قلمکاروں کی بات، ان کے بیانات اختصار کے ساتھ مختلف موضوع پر اردو کے باذوق افراد تک ورچوئل انداز میں پہنچائے جا سکتے ہیں۔ بیشتر اردو چینل ہیں، یوٹیوب اور فیس بک بھی ذریعہ ہے، خود ہم آج بھی اسی کا سہارا لے رہے ہیں۔ خود کا ایک ویب سائٹ بھی ہو سکتا ہے۔ امید ہے میری یہ آواز سدا و صحرا ثابت نہیں ہوگی۔ پہلے کہا جاتا تھا نشستند گفتند برخاستند۔ ڈیجیٹل زبان میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ کلک آن اور کلک آف، بٹن آن اور بٹن آف۔ ہماری بہت سی باتوں کو اس سے پہلے بھی ڈائریکٹر صاحب، بورڈ اور وزارت نے ہمیشہ ساتھ کیا۔ اس لیے NCPL سے میری درخواست ہے کہ میری اس تجویز پر بھی غور کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح ہم اردو کے فروغ اور ملک کی مثبت آوازوں کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم پیش کر سکیں گے۔ خدا حافظ، دعائے صبح امید کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالسمیع بوبیرے صاحب، آپ نے وقت کا خیال کرتے ہوئے 9 منٹ میں اپنی بات مکمل کر لی۔ ہم اس کے لیے بےحد شکر گزار ہیں آپ کے، اور آپ نے ایک ٹرینڈ سیٹ کر دیا آنے والے مقالہ نگاروں کے لیے۔ خواتین و حضرات، ہماری فہرست میں دوسرا نام، محترم نام پروفیسر محمد غلام ربانی صاحب کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یونیورسٹی آف ڈھاکہ بنگلہ دیش
गुज़िस्ता एक दहाई में कम अज़ कम उर्दू के मंजरनामे पे शोबे उर्दू ढाका यूनिवर्सिटी को जो शोहरत और मकबूलियत मिली है, उसमें प्रोफेसर ग़ुलाम रब्बानी साहब का बहुत अहम किरदार है। आपकी दर्जनों अहम किताबों के मुसन्निफ़ हैं। एक बड़ा डिपार्टमेंट है ढाका यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका बांग्लादेश में उर्दू का, बड़ी तादाद में वहाँ लोग रिसर्च कर रहे हैं। मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब उर्दू, बांग्ला और कई ज़बानों से वाकिफ़ हैं। आपकी किताबें उर्दू और बांग्ला के रिश्तों को जोड़ने का काम भी करती हैं। आपने दीनियात पे भी आपने किताबें तसनीफ़ की हैं और तमाम इंटरनेशनल फोरम पे उर्दू की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत सेमिनार और वेबिनार पे आपकी शमूलियत होती है। इस मौके से मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ ढाका के यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू को आलमी मंजरनामे पे लाने में अहम किरदार अदा करने वाले प्रोफेसर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब से गुजारिश करता हूं कि वक्त का ख्याल करते हुए अपना मकाला पेश करें। मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, बांग्लादेश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डायरेक्टर शेख अकील अहमद साहब, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र अली शामिरी साहब और निज़ामत करते हुए शफिया अयूब साहब, सबको सलाम। जो बांग्लादेश, इंडिया और दूसरे ममालिक से जो सुन रहे सबको आदाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा मकाला का उन्वान है सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी उर्दू शायरों की सरगर्मियाँ। सोशल मीडिया पर बांग्लादेशी उर्दू शायरों की सरगर्मियाँ। कोशिश करूँगा, ये मकाला टोटल 15 सफ़ा पर है, फिर मैं कोशिश करूँगा तीन चार सफ़ा पढ़ने के। बांग्लादेश में उर्दू को एक वक्त नफरत की नज़र से देखा जाता था, अब वक्त का बदल चुकी है। इस वक्त बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी और राजशाही यूनिवर्सिटी में तकरीबन 800 तलबा BA ऑनर्स, MA, MPhil और PhD कर रहे हैं। ढाका यूनिवर्सिटी जर्नल ऑफ उर्दू शाया हो रहा है। सिंध साजिद की अदालत में उर्दू मजल्ला शाहकार भी फिर से मंजर आम पर आना शुरू हुआ है। उर्दू मुशायरा भी काफ़ी इनेकाद हो रहा है। इस साल 2020 के जनवरी में एक आलमी मुशायरा का इनेकाद हुआ था ढाका यूनिवर्सिटी में। उसमें 11 मुल्क से उर्दू शायरों ने अपनी शायरी पेश की। 1919 में भी ढाका यूनिवर्सिटी में एक कौमी मुशायरा का इनेकाद किया गया था। 2014 में ढाका यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम एक शानदार इंटरनेशनल मुशायरा का इनेकाद हुआ, जहां मुख्तलिफ मुल्क से मुख्तलिफ ज़बानों के शायरों ने अपनी शायरी पेश की। बांग्लादेश के सैयदपुर, मीरपुर, मोहम्मदपुर, चाटगाम, धनमंडी वगैरह में भी मुशायरा का इनेकाद किया जाता है। इस वक्त बांग्लादेश के उर्दू शायर और अदीबों ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया में अपनी तहरीरें पेश कर रहे हैं और शायरी भी पोस्ट कर रहे हैं। मुख्तलिफ मुशायरा में भी अपनी शायरी सुना के सामीन को महसूस फरमा रहे हैं। बांग्लादेशी उर्दू शायर शमीम ज़मान नबी, अहमद इलियास, साबिर अली साबिर, अफजल हुसैन, जलाल आज़िमाबादी, हैकल हाशमी, सलम हमीदी, माजिद इकबाल वगैरह इस वक्त सोशल मीडिया में उर्दू शायरी को लेकर बहुत मसरूफ़ हैं। गुज़श्ता 9 अगस्त 2020 में हिंद बांग्लादेश मुशायरा का इनेकाद किया गया चेन्नई में और उसमें बांग्लादेश से जलाल आज़ादी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। उनके अलावा सलम हमीदी, साबिर अली साबिर, माजिद इकबाल वगैरह अपनी शायरी पेश की। इस मुशायरा के कबल 8 अगस्त 2020 में बर्लिन में एक मुशायरा किया गया, जिसमें बांग्लादेश से शमीम मानवी सदरत की। उसमें बांग्लादेशी शायरों में से जलाल आज़िमाबादी, साबिर अली साबिर, सलम हमीदी वगैरह मुशायरा को रौनक किया। ऑनलाइन पर उस मुशायरा में मुख्तलिफ ममालिक से शायरों ने अपनी शायरी पेश की। 23 अगस्त 2020 में और एक मुशायरा में सलम हमीदी ने बांग्लादेश की नियाबत की। बांग्लादेशी शायर जलाल आज़िमाबादी अमेरिका में काफ़ी मारूफ है। कुछ दिन पहले वो अमेरिका के मुख्तलिफ मुशायरा में मदऊ हुए थे। उनकी शायरी मजमुआ कहकशा शाया हुआ है। अब वो अपनी तसव्वुफ़ होने के बावजूद वक्त निकल कर मुशायरा रहते हैं। अहमद इलियास बांग्लादेशी शायरों में सबसे मशहूर है।
وہ ہر روز کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں. فیس بک پر ان کی شاعری ہمیں ہر روز نظر آتے ہیں. وہ مسدس کو 3 شعر نام سے کبھی کبھی پیش کرتے ہیں. گزشتہ 22 اگست وہ اپنے فیس بک احمد الیاس پر ایک 3 شعر پوسٹ کیا ہے. وہ بھی ملاحظہ ہو. 3 شعر: اپنی آنکھوں سے لہو دل کا بہاتے ہی رہے، پھول اس کے لب عارض پہ کھلاتے ہی رہے. آخری شعر: بجھ گئے ایک تو پھر دوسری روشن کر لی، شام تا صبح یوں ہی شمع جلاتے ہی رہے. احمد الیاس کا قلم ہمہ وقت چلتا رہتا ہے. وہ انگریزی اور اردو دونوں زبان میں لکھتے ہیں. بنگلہ زبان میں بھی لکھتے ہیں. بنگلہ دیش میں اردو ادب ان کی مشہور کتاب ہے. ان کی ذاتی شاعری پر کئی کتابیں منظر عام پر آئے ہیں. بنگلہ دیشی شاعروں کا مرکز شمیم زمانوی. وہ ڈھاکہ کے محمد پور میں الفلاح پر زیادہ وقت دیتے ہیں اور پوری بنگلہ دیش میں اردو زبان و ادب کی ترقی کی فکر کرتے ہیں. اس الفلاح بنگلہ دیش کے ماتحت 20 اسکول جاری ہے. شمیم زمانوی گزشتہ 10 سال سے فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ میں اردو شاعری کو ترویج دینے میں کوشاں ہے. وہ ایک زندہ دل آدمی ہیں. ہر دل عزیز ہے. جہاں بھی مشاعرہ ہو اس میں صدارت یا تو نظامت کا ذمہ داری ادا کرتے ہیں. فیس بک پر مختلف پیج بھی ان کی زیر نگرانی چلتا ہے. فیس بک ٹائمز انٹرنیشنل نامی ایک پیج پر ان کا سرگرمیاں کافی قابل ستائش ہیں. ٹائمز پر ایک شاعری ملاحظہ ہو: جسمانی مرض ہو کہ روحانی مرض ہو، ہر روگ کی قرآن میں دوا سب سے الگ ہے. اوصاف مسیحائی ہر لفظ میں اس کے، ہر ترجودہ اور شفا سب سے الگ ہے. بزم سخنوار سبا ادب کہتی ہے ادبی دنیا کی شاعری. اسی طرح حلیم سخن، عشق نگر، انحراف، بزم علی انٹرنیشنل، صاحبان، کس قضا ادبی فورم وغیرہ پر بھی ان کی شاعری شائع ہوتی رہتی ہے. ان کے ایک نظم زبان آپ لوگوں کے پیش خدمت ہیں. زمین کیا ہے میرا آسمان بھی لے لو، میرا غرور میری آن بان بھی لے لو، اگر ہے جان کی ضرورت تو جان بھی لے لو، میرے غموں کی نچوڑ خوشی بھی لے لو، میرا شعور میری آگاہی بھی لے لو، اندھیرے دے کے مجھے روشنی بھی لے لو. اس کے آخر میں وہ جو کہتے ہیں: مگر خیال رہے ہر ایک شے میرے لیے زبان مت چھینو، ہر ایک میرے لے لو زبان مت چھینو. میری زبان میری تہذیب کی امانت ہے، میری زبان میرے اجداد کی وراثت ہے، میری زبان میری قومیت کی پہچان. ان کا اور ایک نظم بنگلہ دیش کی تاریخ پر لکھے ہیں، وہ بھی یہاں قابل ذکر ہے. 52 لہو لہو ہے، 71 لہو لہو، تاریخ ہے گواہ 75 لہو لہو، انسانیت کے سینکڑوں پیکر لہو لہو، کتنے ہی آئینہ کے مقدر لہو لہو. بڑا شعر ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہوں. ابھی تک شمیم زمانوی کی شاعری کا کوئی مجموعہ شائع نہیں ہوا ہے. بہت جلد ایک مجموعہ فاصلوں کی قربت نام سے شائع ہونے والا ہے. شفیع ایوب صاحب کیا مجھے سن رہے ہیں؟ ہلو، بالکل سن رہے ہیں آپ کو. اچھا 2 منٹ میں اور اپنی بات. ٹھیک ہے، میں ختم کرنے والا ہوں. جی ہاں. محی الدین ہمدم چپ چاپ اردو شاعری پر کام کر رہے ہیں. نوکری کی مصروفیت کے باوجود وہ فیس بک پر بہت تزئین کے ساتھ اپنی شاعری کو پیش کرتے ہیں. مشاعرہ میں شریک ہوتے ہیں، نظم یا غزل اپنا انداز سے پیش کرتے ہیں. ان کی فیس بک پر 7 اگست 2020 میں ایک شعر پوسٹ کیا ہے، اس کو دیکھیے. طرف ماں کی پہنچی، طرف ایک ماں کی پہنچی عرش پر ایسے کرینے سے، طرف ایک ماں کی پہنچی عرش پر ایک ایسے کرینے سے، نکل آیا ہی زمزم آخرش صحرا کے سینے سے.
बांग्लादेश के उर्दू वालों में के पास मशहूर शहर सैयदपुर हैं। सैयदपुर में बसने वाले माजिद इकबाल भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में बहुत मसरूफ़ हैं। ऑनलाइन मुशायरा में भी शरीक होते हैं। फेसबुक पर भी अपनी शायरी पेश करते हैं। कुछ दिन पहले उन्होंने ताज़ा मौजू कोरोना पर एक नज़म पेश किया है जो मुलाहजा हो। उफ, कोरोना ने ये कैसा खौफ तारी कर दिया, खून के रिश्ता पे जारी उसने आरी कर दिया। फाका में जिन्हें अपनी आना का पास था, उस वबाई वक्त ने उनको भिखारी कर दिया। सैयदपुर से रियाज रफीक, नसीरुद्दीन फहमी, अकबर हुसैन आमी, हसनैन राज वगैरह शायरी करते हैं। सैयदपुर के अशरफुल हक बाबू सागर बहुत फ़ाल आदमी है। सियासत में और समाज की बहबूदी के लिए बहुत वक्त निकलते हैं के साथ साथ मुशायरा में रौनक बढ़ाते हैं। 2014 में ढाका यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इंटरनेशनल मुशायरा में उन्होंने बहुत जिम्मेदारी अदा की है। 1919 के कौमी मुशायरे में भी उनके क़यादत में सैयदपुर से शायरों का एक गिरोह ढाका हाजिर हुए थे। उनकी मसरूफियत के बावजूद वक्तन फ़वक्तन फेसबुक वगैरह पर अपनी शायरी पेश करते हैं। ढाका में साबिर अली साबिर, अफजल हुसैन, मोहम्मद हसन, मोहम्मद इनायतुल्लाह सिद्दीकी, अरमान शमसी, सिमीम साजिद, सलीम, रिजवाना, तालिब अली तालिब, रशीद अहमद वगैरह भी उर्दू में शायरी करते हैं। ढाका के नौशद नूरी शायरी दुनिया में एक मारूफ मशहूर शख्सियत थे। उनकी शायरी को उनके बेटे हैकल हाशमी ने अभी तक जिंदा रखा है। उनकी शायरी को वक्तन फ़वक्तन फेसबुक पर डाल देते हैं। उनसे एक शेर मुलाहजा हो। मोहतरम शहर आखिरी में पैराग्राफ पढ़ जी दीजिए। जी जी, एक मिनट इंशाल्लाह। शहर में मिन्नत कश जिंजीर कोई भी नहीं, लोग अपने जुनून से बरसर पैकर आप। नौशद नूरी का बेटा हैकल हाशमी इस वक्त गुज़श्ता कल भी हॉस्पिटल में दाखिला लिया है। अल्लाह को शिफा अता फरमाए। उनका एक गज़ल जो वो परसों 25 अगस्त में फेसबुक पर डाला है, इसका मतलब सफ़र भी जिंदगी का कट गया तन्हा, सफ़र भी जिंदगी की कट गया तन्हा, हुजूम यार में भी रह गया तन्हा। इसका मकता दिया है रोग किसने को है कल, सहरता शाम क्यों फिरता रहा तन्हा। बांग्लादेश में अभी तक शेर और शायरी बाकी है। इंशाअल्लाह आइंदा नस्ल इसको आगे बढ़ाएंगे। शायद ये शहर का मस्तक बांग्लादेश है। सलीके से हवाओं में जो खुशबू घुल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी है जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। ये फ़ज़ाओं में खुशबू घोलने का काम उर्दू ज़बान ने किया है। अभी आप मकाला सुन रहे थे प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका, बांग्लादेश में आप उर्दू के उस्ताद हैं, प्रोफेसर हैं। बांग्लादेश में उर्दू के उन शोरा का तज़किरा था तो फेसबुक पे एक्टिव है अपनी शायरी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब। क्या मैं प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं? अगर प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद के बारे में आप में से बेशतर हजरात जानते हैं कि हम जिन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव दुनिया में, रेडियो की दुनिया में प्रोफेसर GR सैयद के नाम से जानते हैं, उर्दू के अफसानवी अदब में गयासुर रहमान के नाम से जिनके अफसाने हम पढ़ते रहे हैं, वो इस वक्त जामिया मिल्ला इस्लामिया में MCRC रिसर्च सेंटर में मोहतरम प्रोफेसर GR सैयद साहब प्रोफेसर हैं। आप रेडियो जामिया के इंचार्ज भी हैं। 10 से ज़ायद अहम किताबों के मुसन्निफ़ हैं। 200 से ज़्यादा आपकी कहानियाँ पब्लिश हुई। कम से कम 2 दर्जन आपने ड्रामे लिखे हैं। बहुत सारी फिल्मों और टेलीविज़न सीरियल्स के स्क्रिप्ट राइटर हैं, बहुत इस मुल्क के जाने माने। एक अफसाना निगार की शक्ल में, एक रेडियो पे अपनी खिदमत देने वाले में प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद, जिन्हें हम GR सैयद और गयासुर रहमान के नाम से जानते हैं, मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ अहद हाजिर के
मुमताज़ अफसाना निगार और मास कम्युनिकेशन के माहिर प्रोफेसर गियासुर रहमान सैयद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपना मकाला, क्योंकि उनसे वक्त का कहना ही नहीं, वो ऑल इंडिया रेडियो के आदमी रहे, वो सेकंड में कोई बात हो तो 8 मिनट और 30 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल करते हैं। मैं अदब और के साथ शफी अयूब साहब जी जी और प्रोफेसर गियासुर रहमान साहब से माजरत के साथ मैं चंद मिनट्स के लिए ट्वीट करना चाहता हूं, माजरत के साथ। थोड़ी देर के बाद मैं फिर आपसे ज्वाइन करूंगा। और प्रोफेसर गियासुर रहमान सैयद साहब आप शुरू करें, मैं थोड़ी देर में दूसरे अपने लैपटॉप से मैं ज्वाइन करता हूं। 2 मिनट के लिए मुझे ब्रेक दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जी शुक्रिया बहुत बहुत इस खूबसूरत तारुफ के लिए। सभी जिम्मेदारान, डायरेक्टर, चेयरमैन साहब और मुअज़्ज़िज़ NCPL के अराकीन, सबको दिली मुबारकबाद के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपना ये मकाला शुरू करता हूँ। और उन्वान तो जाहिर है कि सभी जानते हैं ये आज के दौर में क्या जिम्मेदारियां हैं राइटर्स की। उसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं। यूं तो हर दौर में कलमकारों की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा और बहुत अहम होती हैं, ताहम आज के दौर की बात करें जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का दौर मानते हैं, इसमें उर्दू राइटर्स की जिम्मेदारियां कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के इस दौर में कलम से निकले हुए या ज़बान से निकले हुए हर लफ्ज़ का फौरी असर होता है और उस पर अमल और रद्द अमल भी फौरन सामने आ जाता है। इस दौर में हर शख्स बहुत ज़्यादा बेदार और चौकन्ना हो गया है। इसमें ना तो मजहब व मिल्लत की क़ैद है, ना कौम और शहरियत की क़ैद है, ना अमीरी गरीबी, ना शहरी, ना कस्बाती, और उम्र की दर्जाबंदी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इधर आपने कुछ लिखा, उधर अगले ही लम्हे तमाम हुदूद को पार करता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया और हर एक ने उस लफ्ज़ या जुमले या मजमून या अफसाना या पैगाम को अपने अंदाज में और अपने तरीक़े से कबूल या रद्द कर दिया। पहले ऐसा नहीं था। किसी कलमकार के कलम से निकली हुई कोई तहरीर शाये होने के मदारिश से गुजर कर कारी तक पहुँचने तक और फिर उस पर तबसरे, तासुरात या इजहार ख्याल के आम होने तक काफ़ी अरसा गुजर जाता था। उस अरसे में अगर वो तहरीर किसी कंट्रोवर्सी का शिकार हो भी जाती तो उसका असर किसी हद तक कम या ज़ायल भी हो जाता था। आज ऐसा नहीं है। कलम से निकली हुई तहरीर आनन फानन में कब क्या सूरत और शिद्दत इख्तियार कर ले, इसका खुद मुसन्निफ को भी एहसास नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ये भी होता है कि लोग बैनुस्सुतूर भी पढ़ लेते हैं या जो मुसन्निफ ने सोचा भी नहीं ऐसा मतलब निकाल लेते हैं। बकौल फैज़, वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी बात या अपने एहसासात दूसरों तक पहुंचाना बहुत आसान हो गया है। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, ब्लॉग राइटिंग, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, और साथ ही एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट के ज़रिए या फॉरवर्डिंग के ज़रिए चश्मे ज़दन में आम किया जाना बहुत आसान हो गया है। इसलिए हर कलमकार की जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। कभी कभी एक बात या अफवाह से क़यामत बर्पा हो सकती है और आजकल हम सब इस तजर्बे से गुजर रहे हैं। अदबी तहरीर हो या आम मज़ामीन, सहाफ़ती, माशरती, सियासी या समाजी तहरीरें हों, हर किस्म की तहरीर के लिए कलमकार पर कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगरचे मुसन्निफ उनको अगर कोई मुसन्निफ उनको पूरा नहीं करता तो यूं समझिए कि वो अपने कलम और समाज के साथ इंसाफ नहीं कर रहा है। अगरचे तख्लीक पर कोई उसूल और ज़वाबित आयद नहीं किए जाने चाहिए, इसलिए कि तख्लीक को आमद या नुज़ूल तस्लीम किया जाता है, ख्वाह वो नसरी हो या नज़्म।
لیکن غیر تخلیقی تحریروں کے لیے عالمی سطح پر کچھ اصول و ضوابط مقرر کیے گئے ہیں۔ چونکہ یہ تحریریں مصنف کی کاوشوں کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ان میں مصنف کے علم، تجربے اور مشاہدے کا بھرپور عمل اور دخل کار فرما ہوتا ہے، اس لیے ایسی تحریریں لکھنے سے پہلے مصنف کو چاہیے کہ چند سوالات وہ اپنے آپ سے پوچھے۔ مثلا پہلا سوال، وہ کیوں لکھنا چاہ رہا ہے؟ وہ اپنے آپ سے اس کا جواب تلاش کرے، اور اگر اپنے جواب سے خود مطمئن ہے تب وہ قلم اٹھائے۔ دوسرا سوال، وہ کیا لکھنا چاہتا ہے؟ یہاں کیا سے مراد ہے کوئی مضمون، کتاب، اداریہ، خاکہ، انشائیہ، سوانح، تبصرہ، تجزیہ، سفرنامہ وغیرہ۔ تیسرا سوال، وہ کیسے لکھے گا؟ جواب میں سوچے کہ اس کا طریقہ تحریر کیا ہوگا۔ اس میں طریقے کے ساتھ ساتھ سلیقہ اور قرینہ تحریر بھی تلاش کریں۔ یہیں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ قلمکار یہ تو جان جاتا ہے کہ اسے کیوں لکھنا ہے، کیا لکھنا ہے اور کیسے لکھنا ہے، لیکن بہت سے ایسے مصنف ہوتے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ کیا نہیں لکھنا ہے، جبکہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس سے اجتناب کریں کہ ہمیں کیا نہیں لکھنا ہے۔ یہ بڑا نازک نقطہ ہے، جو بھی اس راز کو لکھنے سے پہلے جان لیتا ہے تو یقیناً اس کی تحریر اثر انگیز اور پر مقصد ہوگی۔ چوتھا سوال، کس کے لیے لکھنا چاہتا ہے؟ یہ سوال بھی بڑا اہم ہے۔ مصنف لکھنے سے پہلے یہ جان لے کہ اس کا کون ہے۔ یہ قاری، ہر تحریر ہر کسی کی عام ہوتی ہے، اس استفادہ حاصل کر یہ ضروری ہے کہ قاری کا انتخاب کر کے لکھے۔ مثلا اس کی تحریر بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے، خواتین کے لیے ہے، بزرگوں کے لیے ہے، طلباء کے لیے ہے، نوکری پیشہ اور تجارت کرنے والوں کے لیے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ علاقائی حدود بندی بھی کر لیں تو زیادہ اچھا ہے۔ پھر نظریات اور مسلکوں کی درجہ بندی بھی مد نظر ہو تو اور آسانی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد قلم اٹھانے سے پہلے ایک دوسرا مرحلہ درپیش ہوتا ہے۔ مصنف ضروری ہے کہ وہ پہلے کسی موضوع یا خیال کا انتخاب کرے اور اس کے بعد اس موضوع یا خیال یا آئیڈیا ضروری معلومات، حقائق، اعداد و شمار کی اچھی طرح تحقیق یا ریسرچ کر لے۔ ہو سکے تو کچھ پوائنٹس نوٹ کر لے۔ یہ تحقیق نہایت سنجیدگی اور دلائل کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں اگر لاپرواہی ہوئی تو مصنف پر غیر ذمہ داری اور غلط بیانی کا الزام لگ سکتا ہے۔ باقاعدہ تحقیق کے بغیر جو بیانات یا تحریریں منظر عام پر آتی ہیں وہ گمراہ ثابت ہوتی ہیں۔ آج کے دور میں قاری بہت ہوشیار ہو چکا ہے، اسے بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ اس دور میں قاری مختلف اور بے شمار وسیلوں اور ذریعوں سے معلومات فراہم کرنے اور سچائی تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ زبان کا آتا ہے۔ زبان ذریعہ ترسیل ہوتی ہے۔ ویسے تو ہر موضوع کا تقاضا الگ ہوتا ہے اور اس کی مناسبت سے ہی زبان و بیان کا استعمال ہونا چاہیے، تاہم مصنف کی بڑی ذمہ داری ہے کہ زبان کا صحیح استعمال ہو۔ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ موضوع تو ایک ہے لیکن قاری جدا جدا ہیں۔ مثلا کوئی سائنٹیفک موضوع جیسے فلکیات، خلا یا ستاروں کی گردش سے متعلق کوئی مضمون لکھنا ہے تو عام قاری کی زبان قدرے مشکل بھی ہو جائے یا کا خوب استعمال بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اسی موضوع پر ایک منٹ جی، لیکن اسی موضوع پر اگر موضوع پر بچوں کے لیے کتاب یا مضمون لکھنا ہے تو زبان بہت سہل اور بیان نہایت سادہ اور سلیس ہونا چاہیے، ورنہ سارا مقصد فوت ہو جائے گا۔ آج کے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دور میں مصنفین بالخصوص اردو قلمکار اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے قلم اٹھائے تو ہر تحریر بااثر ہوگی اور پر مقصد ہوگی۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر غیاث الرحمان سید صاحب، آپ نے وقت پہ اپنا مقالہ ختم کیا۔ یقینی طور پہ NCPL ان مقالات کی اشاعت کو بھی یقینی بناتے ہیں اور ہم وہاں تفصیل سے پڑھ سکیں گے۔ ہم ایک بار آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ خواتین و حضرات، جو لوگ ہمارے ساتھ بعد میں کنیکٹ ہوئے ہیں
उनके लिए अर्ज कर दूं कि इस 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार का इफ्तिताह कल हुआ था। आज का ये तीसरा इजलास चल रहा है। इसकी सदारत डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के फाउंडर वाइस चांसलर, मुल्क के मुमताज़ नक्काद, शायर और मुतरजिम प्रोफेसर मुजफ्फर शेमीरी साहब फरमा रहे हैं। और इस आज के इजलास में 5 मकालात पढ़े जाने थे, जिनमें 3 मकाले पढ़े जा चुके हैं। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल समी बुबेरे साहब, प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब और प्रोफेसर गयासुर रहमान तैयब साहब अपने मकालात पढ़ चुके हैं। 2 हजरात को और मकाला पढ़ना है। प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब अपना मकाला पेश करेंगे और परियों के देश से अज़रबैजान से जनाब एल्दोस इब्राहिमोव साहब अपना मकाला पेश करेंगे। लेकिन इस दरमियान एक तब्दीली ये हुई है, मुझे मालूम हुआ कि प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजूर्दा साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। कल आपका कलीदी खुतबा था। वज़ीर तालीम मोहतरम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब की मौजूदगी आपने खूबसूरत आगाज़ किया, लेकिन किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से हम उनका कलीदी खुतबा मुकम्मल नहीं सुन सके थे कल। मैं समझता हूं कि जनाब सदर की इजाज़त हो, मुझे सिर्फ वही 10 मिनट जो मकाला निगार हजरात को दिया जा रहा है, हम प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजूर्दा साहब की हुजूर चलें और उनसे गुजारिश करें कि ये 2 मकालात जो हमारी फहरिस्त में हैं, उनसे पहले वो अपने कलीदी खुतबा का वो बाकी हिस्सा जो कल हम नहीं सुन सके थे वो पेश फरमाएं। आप सभी प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजूर्दा साहब से वाकिफ़ हैं, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक और सारी सुन लेंगे उनको। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। रफी साहब सुन लेंगे, उनको भी सुन लेंगे, उनको भी जी, सुन जी। लेंगे, सुना दीजिए। बिल्कुल इजाज़त है, प्रोफेसर मुजफ्फर शेमीरी साहब की इजाज़त है। तो मैं दस्तबस्ता वक्त बचा रहा हूँ। कल तहसीन मनोवर साहब बहुत खूबसूरत तारुफ करा चुके हैं प्रोफेसर मोहम्मद जमा अजूर्दा साहब को साहब का, मैं उसी को डू कर देता हूँ, वक्त बच जाएगा 2 मिनट कम से कम। तो बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम नहीं, उसी से तो नजर लग गई थी कि बाद में मुनक़ता हो गया सिलसिला। जी हाँ, बेहतर ये है कि तारुफ आप रहने दीजिए, बहुत हो गया है तारुफ। जी, आप शुरू करें। मैं शामी साहब को आदाब अर्ज करते हुए, बाकी दोस्तों को आदाब अर्ज करते हुए, ये पूरा तो मैं खैर वो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कल मैंने 2 मिसालें पेश की थी। एक उस मुसन्निफ की जो हयात है, एक उस शायर की जो हयात नहीं है। जैसे जो हयात हैं, ये अल्लामा एजाज फर्क ने अपनी वेबसाइट लाई है और लोगों तक बरह रास्त पहुंच रहे हैं। उनकी जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं? और सुलेमान खतीब के अजीजों ने एक वेबसाइट वो उनके लिए वो बनाई है, डिजाइन की है, जिसमें सुलेमान खतीब का वो आ रहा है, वो कलाम वगैरह। तो उसके बाद वो शायद वो बात पूरी नहीं, मैं उसके आगे ये पढ़ता हूँ, ये जल्दी में 3-4-5 मिनट में खत्म करूंगा। मैंने सिर्फ इन 2 हजरात की मिसालें दी हैं। आज ऐसे 20 इदारे और सैकड़ों मुसन्निफीन ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिम्मेदाराना इस्तेमाल में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। इसके पेश नजर सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज के उर्दू मुसन्निफीन की ये है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का इस्तेमाल करें, इसको अपने मतन की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल करें और इसके जरिए दूसरों तक पहुंचने और दूसरों से हकायक अख्ज़ करने की भी कोशिश करें। एक अहम मिसाल तो वक्त ने खुद ब खुद हमारे सामने पेश की है कि अल्लाह सबको महफूज रखे। हमने ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का जमाना देखा। इसने हमारी हुदूद को और महदूद कर दिया। अमली तौर पर एक जगह से दूसरी जगह, एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क का सफर आम लोगों के लिए, जिसमें हमारे मुसन्निफीन भी आते हैं, नामुमकिन हो गया। पहले जो सेमिनार होते थे, हमारे मुसन्निफीन इनमें शरीक होकर बावजूद कौमी सतह और बैनुल-अक़वामी सतह के एक महदूद ग्रोह के साथ मुबाहसा या गुफ्तगू में शरीक होते थे। मगर कोरोना ने हमें सेमिनार से वेबिनार की तरफ रहनुमाई की। वेबिनार सफर दर खलवत और खलवत में जलवत का मौका फराहम करता है। आन की आन में इंसान पूरी दुनिया के सामने आता है और मुतल्लिकीन इसको किसी भी फासले से न सिर्फ सुन सकते हैं बल्कि देख भी सकते हैं, गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। ये बातें पहले हमने दास्तानों में सुनी थी, मगर अब ये वक्त की सच्चाइयां भी हैं और बतौर खास दौर हाजिर की मजबूरियां भी। उर्दू में एक मुहावरा है कि हींग लगे न फिटकरी रंग आए चौका। उर्दू मुसन्निफीन और उर्दू इदारों के लिए जिनके जराया और वसाइल महदूद होते हैं, ये एक ऐसी राह है जिस पर चलकर वह अपनी नातमाम ख्वाहिशात
और कुंवारे अरमानों को पूरा कर सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसका इस्तेमाल करें। हमारी कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की वेबसाइट तारीख में उर्दू का अहम काम कर रही है, जिसका इस मीडिया के बगैर तस्वुर नहीं किया जा सकता था। अलबत्ता देखना यह है, बल्कि मुसन्निफीन की जिम्मेदारी यह है कि वो देख लें कि कोई इस मीडियम को हाईजैक करके डिस सर्विस तो नहीं कर रहा है। गालिब ने कहा था, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हम एतराफ करते हैं कि आज भी कोई ऐसा नहीं है जिसके मुंह में जबान नहीं, खास तौर से उनके जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मगर ये गालिब की तरह से इंतजार नहीं करते कि कोई पहले मुद्दा पूछे तब ये गुलफशाई ये गुफ्तार के जलवे दिखाएंगे। इनका मामला तो ये है कि जो मुंह में आया कह दिया, बिल्कुल ऐसे ही कि काटा और ले दौड़ी। सोशल मीडिया के इस तरह के बेतहाशा इस्तेमाल से गैर जिम्मेदारी इस कदर राह पा गई है कि जेन्युइन मुसन्निफीन की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। एक जमाना ऐसा था कि इलाही कलाम की तरह प्लेगियरिज्म का पता लगाना एक मुश्किल काम था। अलबत्ता कहीं जबान के बदल जाने से किसी को कहीं पकड़ा जा सकता था, जैसे किसी ने अंग्रेजी में गुलरुखा को गुलर खान लिख दिया था। मगर बरसों बाद पता चलता था कि ऐसा हुआ है या तहरीफ हुई है। अब इस मीडिया ने ऐसे सॉफ्टवेयर दिए हैं कि पल भर में पता चलता है कि दाल में कहाँ, कैसा और कितना काला है। मगर ये जिम्मेदारी भी मुसन्निफीन की है कि उस मीडिया का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल करें। अगर आज के मुसन्निफीन और क़ारीन इस इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का सही इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें ये अंदाजा करने में आसानी होगी कि अगले वक्तों के लोगों को क्या क्या ज़हमतें उठाना पड़ी होंगी। दूर की वजह ऐसे तकरीबन 50 बरस कबल, यानी 7वीं दहाई के इब्तदाई बरसों 72-73 में लखनऊ जैसे मरकज़ी इल्म अदब में सिर्फ 2 ज़िराक्स मशीनें थी। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी टैगोर लाइब्रेरी में उसके रिप्रोग्राफी सेक्शन में, और दूसरी अवर क्लार्क होटल में। महीनों कतार में रहना पड़ता था और उसके बाद क्या, वो एक डिब्बे को खोल खाल के उसमें ग्रेन्यूल्स डालते थे, फिर हिलाते जुलाते थे, जब कहीं फिर वो काला कलोटा अक्स आता था। किसी बच्चे ने स्याही फैला दी हो। और हमारे पास कितनी सहूलतें हैं। उसी लखनऊ में एमिनाबाद से कैसर बाग तक तिजारती इस्तेमाल के लिए आज कम से कम इसी फासले में 100 मशीनें दस्तियाब होंगी। अब देखना यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया की ऐसी वफादार और फरमाबरदार औलाद सोशल मीडिया के नए उर्दू मुसन्निफीन का रवैया और जिम्मेदारी क्या है और क्या होना चाहिए। सोशल मीडिया यानी समाजी जरिए तरसील क्या है? ये बुनियादी तौर पर एक प्लेटफॉर्म है जिसकी ये अलग अलग सूरतें या कहिए अलग अलग ठिकाने जैसे हैं। अभी गयास साहब ने भी जिक्र किया इसका, सही साहब ने। नंबर 1 फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, टिकटॉक। इनकी सूरत ऐसे प्लेटफॉर्म्स की है जिसके अपने मैसेंजर यानी पैगाम रसा के सफीर हों। दूसरी सूरत उन पैगामबरों की है जिन्हें प्लेटफॉर्म तो नहीं कहा जा सकता, मगर इनमें बात एक ऐसा ग्रुप भी तश्कील दे सकते हैं जो मुश्तरका पैगामात को वसूल भी कर सकते हैं और अपने रद्द-ए-अमल का इजहार भी कर सकते हैं। इनमें बाज सिर्फ टेक्स्ट से काम ले सकते हैं और बाज वीडियो और ऑडियो को भी काम में ला सकते हैं। ये पैगामबर ये हैं: व्हाट्सएप, स्काइप, टेलीग्राम, इमो, टॉक, डिस्कॉर्ड वगैरह। ये सब डिवाइसेस, हथियार, जराया या असबाब आज के मुसन्निफीन के सामने मिस्र खुदाम के हैं। जब चाहें इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है कि इनके बेजा इस्तेमाल से कई मनफी बातें भी सामने आई हैं, जिनसे सबक हासिल करके आज मुसन्निफीन को जिम्मेदार यूजर्स ऑफ टेक्नोलॉजी होना है। ये अपने मुसन्निफीन के ग्रोह, फोरम्स या फोरा तश्कील दे सकते हैं और इसमें ये जिम्मेदारी निभा सकते हैं। नंबर 1 माकूल मवाद यानी क्वालिटी कंटेंट जो है ये शाया करके सही मकासद का हुसूल करना। ये इन सफात पेज से प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह का मवाद शाया कर सकते हैं जिनसे नौजवानों में न सिर्फ इसके लिए कशिश पैदा हो बल्कि इनकी सोच मुस्बत और ख्यालात सेहतमंद हो जाए। आज के मुसन्निफीन की ये भी जिम्मेदारी है, एक तो वो खुद जिम्मेदारी का सबूत दें और दूसरे नौजवान मुसन्निफीन क़ारीन को ये बावर कराएं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए किस तरह जिम्मेदार फर्द होने का सबूत फराहम करना है। नंबर 3 जो भी मवाद इन सफात पर शाया करें उसके बारे में पहले यकीन कर लें कि ये सही है और इससे कोई गलती या गलतफहमी राह नहीं पा सकती। जिस मवाद के बारे में उनको किसी तरह का शक हो उसको दूसरों के साथ शेयर न करें। 4 अगर अपने जराए के बारे में अपने ग्रुप या अहबाब या आम लोगों को कुछ बताना हो तो देखेंगे कि वो इन जराए के बारे में सही इतला फराहम कर रहे हैं। और ये तो है ही कि जब तक जराया मुस्तनद न हो उस वक्त तक कोई मवाद यानी इंफॉर्मेशन दूसरों को न भेजें, इन्हें पोस्ट न करें।
اور ایک طرح کی ریسورس لائبریری، ڈیجیٹل لائبریری تشکیل دیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ سوشل نیٹ ورک کس طرح سے اور کیسے کام کرتے ہیں۔ 6، آئی ٹی پروفیشنلز کے ساتھ رابطہ رکھیں جن سے وقتاً فوقتاً مدد لے سکیں تاکہ محض کسی تکنیکی خلل کی وجہ سے یہ اپنا کام ادھورا نہ چھوڑیں۔ نمبر 7، سوشل میڈیا کے ذریعے مائنڈ سیٹ یعنی سوچنے کا طریقہ متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے مصنفین کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی طرح کی منفی سوچ کچے ذہنوں میں راہ نہ پا سکے۔ 8، جہاں تصویر و خاکوں یا اس طرح کے اور سہاروں کی ضرورت ہو وہاں ماہر گرافک ڈیزائنرز کی صلاح لیں جو سینکڑوں طرح کے مثبت گرافک ڈیزائنز کے استعمال میں بہتر صلاح دے سکتے ہیں۔ آخر میں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا کے یہ پلیٹ فارم اور پیغام رساں ذرائع شخصی اور ذاتی اغراض کے لیے بھی استعمال کیے جاتے ہیں اور تجارتی مقاصد کے لیے بھی۔ اس میں کوئی حرج نہیں کہ اگر ایک مصنف اس کے ذاتی یا شخصی استعمال سے کوئی مالی فائدہ، شہرت وغیرہ بھی حاصل کرے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کے استعمال میں اس کا مطمع نظر ہی محض تجارتی ہو۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر ایک آدمی شیش محل میں چل رہا ہے تو اسے پھونک پھونک کے قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر وہ کسی ایسے ماحول میں ہے جہاں ہائیلی انفلیمیبل چیزیں پھیلی ہوئی ہیں جیسے بارود یا نائلان کا داغا وغیرہ، تو اس کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ کسی طرح کی کوئی آتشی چیز جیسے ماچس کی تیلی، جلتی ہوئی بتی یا گلیسرین اور پوٹاشیم کاربونیٹ جیسی ملی ہوئی چیزیں وہاں نہ لائے یا نہ رکھے۔ اسی طرح الیکٹرانکس میڈیا یا سوشل میڈیا ایک طرح کا معلومات کا خزانہ بھی ہے، اگر گمراہی پھیلانے کا ایک بڑا ذریعہ بھی۔ یہ سمجھیے کہ آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے بارود کے ڈھیر پر بیٹھے ہیں۔ آخری پیراگراف، اور ذرا سی لفظی سے آپ نہ صرف اوروں کو جلا سکتے ہیں بلکہ خود بھی خاکستر ہو سکتے ہیں۔ ایک زمانے میں دہلی اور لکھنؤ کا فاصلہ طے کرنے میں افواہوں کو بھی ایک عرصہ لگتا تھا کہ جائے کہ صحیح اطلاعات کے، مگر آج آپ ایک بٹن دبانے یا پریس کرنے سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ کی یہ غلطی لاکھوں کروڑوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ اس خطرے کی وجہ سے آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ بڑھتی ہے۔ آخر میں یہ سوشل میڈیا کے ذریعے کمیونٹی کے لیے تعلیم و تعلم کی راہیں تلاش کرنا اور آج کے مصنفین کی اہم ذمہ داریوں کے سلسلے میں میں نے ان ممکنہ ذرائع اردو سافٹ ویئرس اور ویب سائٹس کا یہاں حوالہ دیا ہے۔ اور ایک خاص بات جو کل بالکل ہی رہ گئی تھی، اب دیکھیے یہ پیپر چھپے گا، اس میں اب وہ مزہ نہیں رہا، یہ تو قسطوں میں ہو گیا ہے نا، وہ ایک ساتھ نہیں ہوا۔ بہرحال صرف میں ایک ذرا سا 2 جملے ضرور پیش کروں گا۔ میں قومی کونسل کے ان فعال کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس اہم ویبینار کے انعقاد میں اپنا پرخلوص تعاون پیش کیا ہے۔ خصوصاً اپنے دوست کلیم اللہ صاحب کا شکریہ جو اس پروگرام کی کامیابی اور میری شرکت کے لیے بطور خاص متفکر تھے، اور شاید ان کا متفکر ہونا ہی نہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کل وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا کسی سبب سے۔ کل میں جناب عقیل صاحب کا جو ڈائریکٹر اس کے ہیں، اس کے وائس چیئرمین کا، اور خاص طور سے اس نشست کے صدر پروفیسر مظفر حسین شاہینی جی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس وقت مجھے اجازت دی، ورنہ ظاہر ہے کہ میرا دم گھٹ کے رہ جاتا۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر زما زردہ صاحب۔ خواتین و حضرات، کل کلیدی خطبہ سنا، آج اس کا دوسرا حصہ ہم نے سنا، اور میں اپنی جانب سے جناب صدر پروفیسر مظفر شیمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک بڑے ہمارے بزرگ پروفیسر کا دم گھٹنے سے آپ نے بچا لیا اجازت دے کر۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ خواتین و حضرات، ہماری فہرست میں صرف 2 نام ہیں، ایک پریوں کے دیش سے، کوہ قاف کے دیش سے، آذربائیجان سے، اردو کے استاد، اردو کے عاشق، اردو کے خادم محترم جناب ایلدوست ابراہیموف صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان کا مقالہ سنیں گے، اور اس کے بعد پروفیسر احمد محمد خان صاحب پھر صدارتی تقریر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ بعد میں کنیکٹ ہوئے ہیں ان کے لیے اطلاع عرض ہے کہ اس کے بعد 2 سیشن اور ہونے ہیں آج، 4تھا اور 5واں سیشن، جس کی صدارت فارسی زبان و ادب کی بہت معتبر و ممتاز اسکالر محترمہ پروفیسر اعظمی دخت صفی صاحبہ اس کی صدارت فرمائیں گی، اور ایک سیشن کی صدارت ممتاز نقاد اور دانشور پروفیسر انور پاشا صاحب فرمائیں گے۔ ان دونوں سیشن کی نظامت ڈاکٹر محمد کاظم اور ڈاکٹر احمد امتیاز صاحب کریں گے۔ یہ سیشن ہم امید ہے کہ 12:30 تک جو ہمارا وقت ہے اس میں ختم کر لیں گے۔ تو آئیے ہم ایک ایسے ملک میں چلتے ہیں جو اردو کی بستیوں کے حوالے سے بہت بعد میں اس ملک کا نام جڑا ہے،
आज़रबाईजान। हम दास्तानों में कोह काफ की परियों का जिक्र बहुत सुनते आए हैं, उर्दू की दास्तानें भरी हुई हैं। वो कोह काफ दरअसल वही मुल्क आज़रबाईजान है जहाँ से हमारे दोस्त मोहतरम एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। आपको इत्तला अर्ज़ है कि इनका जो नाम एल्दोस्त है, एल्दोस्त के मानी होते हैं सबका दोस्त। यकीनी तौर पे इब्राहिमोव साहब सबके दोस्त हैं और ये बाको यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी जो वहाँ की राजधानी है, बाको स्टेट यूनिवर्सिटी के जो पहला बैच था उसके ग्रेजुएट हैं, वहाँ से उर्दू के साथ पहले बैच के ग्रेजुएट हैं और इस वक्त वहाँ उर्दू की तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। मोहतरम एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब ने कम अज़ कम आधा दर्जन किताबें वहाँ के उर्दू के तालिब इल्मों के लिए लिखी हैं और एक खुशाइंद बात यह है जिस पे मैं मोहतरमा डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहिबा और मोहतरम डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब की तवज्जो चाहूँगा कि ये साहब आज़रबाईजानी और उर्दू लुग़त तैयार कर रहे हैं, यानी आज़री उर्दू, उर्दू आज़री, ये काम पहली मरतबा हो रहा है और 2-3 महीने के अंदर ये इनका काम मुकम्मल हो जाएगा, मुझे ऐसी जानकारी है। मुमकिन है कि कौमी कौंसिल इस काम के हवाले से भी कुछ गौर कर सके। मैं बग़ैर और किसी तमहीद के आज़रबाईजान की बाको स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू की तालीम, उर्दू की तदरीस से वाबस्ता मोहतरम एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब से गुजारिश करता हूँ कि जिन परियों की कहानी कोह काफ की कहानी हम दास्तानों में पढ़ा करते थे, वो तमाम दास्तानवी किरदार लेकर आज़रबाईजान से उर्दू के रिश्तों को जोड़ने का काम जनाब एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब कर रहे हैं। अपना मकाला वक्त का ख्याल करते हुए 7 से 10 मिनट के अंदर आप पेश फरमाएं। मोहतरम एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना वीडियो ऑन कर दीजिए, आपका चेहरे पुरनूर हमारे सामने आना चाहिए। बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक हैं मोहतरम एल्दोस्त इब्राहिमोव। मेरे आवाज आ रही है? आवाज आपकी आ रही है बिल्कुल, लेकिन वीडियो भी आप ऑन कर दीजिए। सामने एक ऑप्शन, वीडियो भी खुला है। वीडियो खुला और है। अभी हम आपका चेहरे पुरनूर नहीं देख पा रहे हैं, आपकी आवाज हम सुन रहे हैं। वीडियो खुला है और मैं कोई नहीं देख सकता हूँ और आपका वीडियो भी बंद है। अच्छा, शायद टेक्निकल मसाइल है। आपका वीडियो पर जरा क्लिक करें, वो आ जाएगा जी। और जनाब एल्दोस्त इब्राहिमोव साहब आज़रबाईजान बाको स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हैं। जाहिर सी बात है गुज़िश्ता 20 वर्षों से वहाँ उर्दू तदरीस का सिलसिला शुरू हुआ है और बाको यूनिवर्सिटी में जो पहले बैच से ग्रेजुएट हैं मोहतरम एल्दोस्त। मेरी तस्वीर नजर आ रही है? आप अपना मकाला शुरू कीजिए, तब तक की हमारी तकनीकी टीम जी देख रही जी। है। आप मकाला शुरू। और सबको आदाब पेश करता हूँ और दावत के लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और मेरे मकाले का नाम आलमगीरी तौर और विजुअल स्पेस में उर्दू ज़बान, कुछ मुश्किलात और मसाइल। ज़बान कौम की शिनाख्त है। कौम ज़बान से जिंदा रहती है क्योंकि ये ज़बान ही है जो कौम की तारीख और तहज़ीब और तमद्दुन की नुमाइंदा है। ज़बान कौम का हकीकी सरमाया है जो कौम के उरूज और ज़वाल की अक्कासी है। कहते हैं कि अगर किसी कौम को तबाह करना हो तो उसकी ज़बान को तबाह कर दो, वो कौम खुद ही तबाह हो जाएगी। इसलिए मुल्क और मिल्लत की तरक्की में ज़बान का किरदार बेहद अहम है। दुनिया में आलमगीरी का अमल न सिर्फ मईशत बल्कि माशराती, सियासी और सकाफती शोबों पर भी संगीन असर पड़ता है। ये तब्दीलियाँ सबसे पहले मुख्तलिफ सकाफ़तों में अक़वाम के सकाफती और रूहानी वर्सा में ज़ाहिर होती हैं। इस नुक्ते नज़र से आलमगीरी यानी ग्लोबलाइजेशन के अमल से दुनिया की ज़बानों पर भी असर पड़ना फितरी बात है। आलमगीरी अक़वाम का बाहमी ताल्लुक़ और एक दूसरे की तर्ज ज़िंदगी से मुमासलत है। इस मामले में अक़वाम की ज़बान और सकाफ़त, रवाज और रवायत के ज़ाय होने का ख़तरा के तहव्वुज़ पर ख़ास तवज्जो दुनिया देना चाहिए। तहकीकात से पता चलता है कि मुस्तक़बल करीब में मुतअद्दिद ज़बानें मद्दूम होने के ख़तरे में हैं। बैनुल अक़वामी तंज़ीमों ने भी इस बारे में तशवीश का इज़हार किया है। आलमी माशरे की तवज्जो इस मसले की तरफ मबज़ूल
करवाने के लिए और ज़रूरी इक़दामात उठाने के लिए यूनेस्को के अक़दाम पर 11 फरवरी 2000 ईस्वी से हर साल आलमी यौम मादरी ज़बान मनाई जाती है। ब्रिटानिया के जिंदा ज़बानों का इंस्टीट्यूट के महक़क़ों ने पता चला है कि सदी के आखिर तक यानी इस सदी के आखिर तक तमाम मौजूदा ज़बानों में से 10% ज़बानें जिंदा रहेंगी। आमतौर पर कुदरती आफत के नतीजे में किसी कौम की तबाही, तालीमी निज़ाम में किसी दूसरी ज़बान का इस्तेमाल के अलावा मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी की तरक्की के नतीजे में भी उन ज़बानों के वजूद को खतरा बनाता है जो वर्चुअल खला में यानी टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट और सोशल मीडिया में कम इस्तेमाल होता है। फ़िलहाल इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़बानों की दर्जाबंदी के मुताबिक 10 ज़बानें अंग्रेज़ी, चीनी, जापानी, हिस्पानवी, जर्मन, फ्रांसीसी, कोरियन ज़बान, पुर्तगाली ज़बान, इतालवी ज़बान और रूसी ज़बान है। उसकी पहली वजह यह है कि उन ज़बानों की सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। मिसाल के तौर पर रूसी फेडरेशन के इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के नज़रिए में ज़बान मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ की एक चीज़ समझा जाता है और ज़बान की हिफाजत कौमी सलामती के बुनियादी शराइत में से एक है। जदीद दुनिया में आलमगीरी के अमल उर्दू ज़बान पर भी असर पड़ता है। ज़बान पर आलमगीरी का बराह रास्त असर उसकी लुग़ावी सतह से वाबस्ता है। इस्तिलाहात जो लुग़त के एक अहम और सबसे ज़्यादा फ़ाल हिस्से में से एक है, साइंसी और तकनीकी तरक्की और आलमगीरी के सिलसिले में तब्दील और इख्तिरा करती है। बैनुल-अक़वामी माशरे तक बराह रास्त रसाई ज़बान की हर सतह के साथ इस्तिलाहात को भी मुतासिर करती है। यह भी मालूम है कि साइंसी ज़बान को माहिरीन तरक्की करवाते हैं और साइंसी ज़बान का अंसर दूसरी ज़बान में तब्दील होकर वहाँ आसानी से तरक्की कर सकती है। लेकिन सबसे पहले साइंसी ज़बान की अनासर उर्दू ज़बान की दाखिली सलाहियतों के ज़रिए होना चाहिए। साइंस और तकनीकी तरक्की समाजी सियासी ज़िंदगी की तरक्की इस्तिलाहात की मुसलसल तब्दीली और तरक्की को मुतासिर करती है। मुस्तार अल्फाज से ज़बान की अफज़ुदगी भी एक फितरी अमल है। आज की ज़िंदगी में कोई भी मालूमात हासिल करने का एक आसान तरीका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इस नुक्ते नज़र से इंटरनेट के वसाइल को मज़ीद तक़वियत दी जानी चाहिए और ज़बान और अदब और उर्दू का तहज़ीब व सक़ाफ़त, उर्दू मौसीकी के तहफ़्फ़ुज़, तरक्की और फ़रोग़ के लिए नई साइटें तश्कील दी जानी चाहिए। नौजवान नस्ल तालिब-इल्म तालीमी अमल के दौरान अपनी ज़रूरत के मुताबिक कोई मालूमात हासिल करने के वक्त उन्हें न सिर्फ गैर मुल्की साइटों पर बल्कि अपनी मादरी ज़बान में भी इंटरनेट वसाइल पर मज़ीद और मुकम्मल मालूमात हासिल करनी चाहिए। वर्चुअल स्पेस में हर मुल्क की ताकत उसके इलेक्ट्रॉनिक मालूमाती वसाइल के वज़न से भी पैमाइश की जाती है। इन हक़ाइक़ के नुक्ते नज़र से मजाजी खिला में उर्दू ज़बान की शिनाख्त, तरक्की और दीगर मसाइल के मैदान में बुनियादी बड़े पैमाने पर साइंसी तहक़ीक़, तज्ज़िया और मुतालिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में उर्दू ज़बान के माहिरीन रहते हैं। उर्दू ज़बान की तरक्की और उसको पूरी दुनिया में कामिल शक्ल में मुतारफ़ करवाने के लिए हर माहिर को ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मी से काम करना, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दामात करना चाहिए और इस काम में ममालिक के ताआवुन की बहुत ज़रूरत है। दुनिया में उर्दू बोलने वालों की तादाद तकरीबन
50 करोड़ है। उर्दू 95% पाकिस्तानियों की ज़बान होने के बावजूद अब तक सरकारी ज़बान ना बन सकी और गैर फितरी अंदाज में अंग्रेजी का तसल्लुत कायम किया गया है। उर्दू को दफ्तरी और सरकारी सतह पर राइज हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर बरसागिर पाक व हिंद में उर्दू ज़बान को दफ्तरी और सरकारी ज़बान का दर्जा दिया जाएगा तो ये पूरी दुनिया में फैलेगी और तरक्की करेगी। तमाम बैरूनी ममालिक उर्दू सीखने में दिलचस्पी लेंगे। मिसाल के तौर पर हमारा मुल्क जमहूरिया अज़रबैजान में 2001 ईस्वी से उर्दू ज़बान की तदरीस अमल में है। तालिब इल्म बड़ी शौक से उर्दू सीखते हैं, लेकिन चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान में उसे सरकारी ज़बान की हैसियत से इस्तेमाल न होने की वजह से उर्दू सीखने वाले तालबा इतनी दिलचस्पी नहीं लेते और वो हौसला शिकानी कर रही हैं। हर साल 10 तक तालिब इल्म शोबे उर्दू से ग्रेजुएशन करती हैं और ग्रेजुएशन के बाद कहीं नहीं इस्तेमाल होने की वजह से वो सोचते हैं कि उनकी मेहनत रायगान है और बहुत मायूस होते हैं। जिस तरह ज़बान कौम की कौमी शनाख्त समझा जाता है, इसी तरह उर्दू दुनिया में उस ज़बान में बोलने वाले लोगों की कौमी शनाख्त है। उर्दू ज़बान की सफाई, उसकी ज़ख़ीरे अल्फाज असलियत महफूज रखना, उसकी फितरी तरक्की में रुकावट हुए मनफी अनासर को हटाना और आलमी सतह पर मकबूल ज़बान बनने के लिए जिद्दोजहद करना हर उर्दू परस्त का फ़र्ज़ है। उर्दू को सरकारी ज़बान की हैसियत इख्तियार करने के लिए उर्दू मुसन्निफ़ीन, शायर, अवामी शख्सियत, आमतौर पर उर्दू से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स उस मसाले को सरकारी हलकों और रियासतों के सामने उठाने और इस प्रोपेगेंडे को मजाजी खिला में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया में चलाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब एल्दोस इब्राहिमोव साहब। आप अज़रबैजान बाको स्टेट यूनिवर्सिटी में उर्दू के उस्ताद हैं और उर्दू तदरीस के लिए यहाँ पे कोशा हैं, उर्दू के फ़रोग़ के लिए कोशा हैं। एल्दोस साहब, आपकी गुफ्तगू सुन के हमेशा हमें खुशी होती है, आज भी खुशी हुई। वक्त से आपने अपना मकाला मुकम्मल किया। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम एल्दोस इब्राहिमोव साहब। ख़वातीन और हज़रात, इस 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार के तीसरे सेशन में अब आखिरी मकाला पेश किया जाएगा। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद के शोबे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के सदर, हेड डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और डीन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अर्ज़ कर दूं कि आज की इस फहरिस्त में मकाला निगारों में 2 ऐसी शख्सियात शरीक थीं जिनका ताल्लुक़ मास कम्युनिकेशन की तदरीस से है। प्रोफेसर फैज़ुर रहमान सैयद साहब MCRC, जो कि सारी दुनिया में मास कम्युनिकेशन की तालीम के लिए मशहूर है, और अब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का जो शोबा मास कम्युनिकेशन है वो अपनी शोहरत रफ्ता रफ्ता दुनिया में कायम कर चुका है। मैं प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब मास कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और खुसूसी तौर पे उर्दू मीडिया, TV प्रोग्रामिंग वगैरह आपके स्पेशलाइजेशन है। आपकी किताबें मास कम्युनिकेशन के तलबा के लिए अवेलेबल हैं, पढ़ाई जाती हैं। आप वहाँ पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे और डीन के तौर पे मास कम्युनिकेशन, जिसमें जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया जिस पे आज का सेमिनार है उसकी तदरीस से वाबस्ता है। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ, क्योंकि प्रोफेसर एहतशाम साहब तदरीस से वाबस्तगी से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे अपनी नुमाइंदगी करते रहे हैं, कौम की नुमाइंदगी करते रहे हैं, मुल्क की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इनसे वक्त के बारे में कहने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो सेकंड में वक्त को गिनते हैं और अपने तालिब इल्म को बताते हैं। बहुत ही अदब और एहतराम के साथ मोहतरम प्रोफेसर एहतशाम अहमद साहब। सदर जलसा
प्रोफेसर मुजफ्फर अली शाहमीरी साहब और हमारे इस सेशन के दूसरे पैनलिस्ट सभी का खैर मकदम करता हूँ। मैं अपनी बात कुछ बहुत चंद मिनटों में कहूँगा। पेपर तो मेरा पब्लिश होगा, उसी से रिलेटेड मैं कुछ अलग बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसा कि मालूम है कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि 2 साल का मास्टर्स कोर्स जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑफर करती है। साथ ही साथ ग्रेजुएट कोर्स भी हम लोगों ने 2 साल पहले शुरू किया, बीए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जो कि एक किसी भी यूनिवर्सिटी से आप नहीं कर सकते उर्दू मीडियम में। तो मेरी जिम्मेदारी, क्योंकि यहाँ पे एज ए उर्दू जर्नलिस्ट राइटर्स की जो अहमियत है और जो उनके चैलेंजेस हैं, मैं उस पर अपनी बात रखना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इस आजकल का जो टेक्नोलॉजी का जो पीरियड है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो अहमियत है वो टेक्नोलॉजी और उस मीडियम को किस तरीके से यूज़ करके हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक अपनी पहुँच अपनी रीच को बढ़ा सके। इसी पेश नज़र में अगर आप देखते हैं तो आज जो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 30% से ज़्यादा यूथ की है। और जब हम बात करते हैं उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन की, तो वहाँ भी उर्दू जो स्पीकिंग पॉपुलेशन है उसमें एक बहुत बड़ी तादाद जो यंग एज है वो उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन की यूथ है। तो हम जब देखते हैं कि आज जो सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जो उसमें जो एज ए राइटर जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जो कंटेंट, उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। चाहे वो लैंग्वेज की बात हो, चाहे वो आपको अच्छा कंटेंट डेवलप करने की बात हो, चाहे उस मीडियम की जो खुसूसियात हैं उनको जो है इस्तेमाल करने की बात हो। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि उर्दू के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसको कैसे बेहतर यूज़ करें, और जो उसके कुछ वसूल हैं मीडिया के एथिक्स जो हैं उस पे कैसे फोकस करें जिससे सोसाइटी को बेहतर बनाया जा सके। आपने देखा होगा कि कोविड पैंडेमिक में किस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, किस तरीके से उन्होंने बहुत ही एक निगेटिव इमेज बनाई एक ख़ास पार्टिकुलर कम्युनिटी की, जबकि उस वक्त उस हमारी मीडिया की ये ज़रूरत ये जिम्मेदारी थी कि कम से कम किसी खास पार्टिकुलर कम्युनिटी को निशानदेही ना करके हम उस कमी को आगे लाते उस कम्युनिटी की कि क्यों नहीं वो कोविड पैंडेमिक की जो सूरत हाल है वो एक कम्युनिटी उस तक क्यों नहीं सही से रीच उसकी हो पा रही है। तो इस पेश नज़र जहाँ पे सोशल मीडिया का रोल रहा वो भी बहुत निगेटिव रहा, और हमारे जो उर्दू मीडिया खासकर हैं पार्टिकुलर, उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस खूबी को अंजाम दिया कि उन्होंने कहीं भी किसी भी जगह कोई भी निगेटिव या ऐसा पहलू उन्होंने नहीं यूज़ किया जिससे उर्दू मीडिया की बदनामी हुई हो। तो मैं कहना चाहूँगा कि सवाल ये है कि हम जो उर्दू राइटर्स हैं वो किस तरीके से आज के दौर में जहाँ पे इतनी तरक्की हो रही है टेक्नोलॉजी की, हर तरफ इसका डेवलपमेंट हो रहा है, तो हम कंटेंट को किस तरीके से लोगों तक पहुंचाएं कि वो पॉजिटिवली उसको रिसीव करें। क्योंकि ऐसा ना हो कि सोसाइटी में टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो जाए और हम लोग ज़बान के नाम पे, मज़हब के नाम पे डिवाइड हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि चाहे वो व्हाट्सएप हो, सोशल मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो, उसमें अलग अलग चीज़ों को गलत ढंग से एक पिक्चर को, कहीं की पिक्चर को, कहीं के वीडियो को यूज़ करके कुछ चीज़ें निगेटिव दिखाई गई किसी कम्युनिटी के खिलाफ, जिससे बहुत बड़े राइट्स हुए, बहुत सारे लोगों की जानें गई। तो ये आज एक बड़ा चैलेंज है हमारे राइटर्स के लिए और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं, जो उर्दू से जुड़े हुए लोग हैं, कि किस तरीके से हम वो कंटेंट को पॉजिटिवली और एक अच्छे ढंग से अपनी सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए, अपने नेशन को मजबूत करने के लिए, अपने लोगों में भाईचारा बढ़ाने के लिए हम उसको सही से रख सकें, जिससे हमारे बीच की जो कमियां हैं, जो हमारे बीच के गैप्स हैं, जैसे शुरू में हमारे बीच
इंटरफेथ पे जो बात हुई, जो बहुत बड़े काम करते हैं लोग इस पे, कि किस तरीके से जो कमियां हैं हमारे बीच, वो इसलिए नहीं है कि हमारे रिलीजन में कोई खामियां है, इसलिए क्योंकि हम अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सही से डिसिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको सही ढंग से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो इस कमी को हम कैसे दूर करें, इसको हमारे जो राइटर्स हैं, जो नए हमारे इस फील्ड में आने वाले हैं स्टूडेंट्स या नए जो राइटर्स हैं, उसको सही से निशानदेही करके उस चीज को दूर करें। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू जो हमारे राइटर्स हैं या हमारे जो जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके लिए चैलेंज ये है कि आज आने वाले दिनों में क्या हमारे पास वो रीडरशिप या वो व्यूअरशिप मौजूद होगी, क्योंकि जिस तरक्की से उर्दू मीडिया या जो हम कहें इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स या रेडियो चैनल्स या न्यूज़पेपर्स जिस तरक्की से अपने 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 वजूद को बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो हमारे कायरीन होने चाहिए, रीडरशिप होनी चाहिए, व्यूअरशिप होनी चाहिए, वो उनमें दिन ब दिन उसमें कमी आती जा रही है। तो सोचने की बात ये भी होगी कि जो कंटेंट हम लिख रहे हैं, क्या हमारे आगे फ्यूचर में हमारे उनको फीड करने के लिए क्या आसान जो फीडर्स हैं वो कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें उर्दू मीडियम स्कूल्स और ऐसे बहुत सारे चीज़ें हम डेवलप करें जहाँ पे उर्दू राइटर्स की एक अलग शिनाख्त बन सके। अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा कि फेसबुक मुशायरा शुरू हुआ, बहुत पॉपुलर रहा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, तो उसमें जो उर्दू दूसरे कम्युनिटी के लोग भी थे वो भी जुड़े। तो हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है कि हम यूज़ कर सकें। और अभी मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगा, शायद आप लोग भी एक सीरियल से वाकिफ़ हों, अर्तुगरुल गाजी, जो कि इजिप्ट का एक सीरियल है और उसकी करोड़ों में व्यूअरशिप है। वो आप उसको देखें कि पाकिस्तान ने उसका सीजन 1 उर्दू में डब किया था, टेक्नोलॉजी डबिंग है बहुत अच्छी, ठीक थी, फर्स्ट सीजन अच्छा गया। उसके बाद उस चैनल के गलत ढंग से लोगों ने अपने अपने उसमें ट्रांसलेशन करके, गूगल ट्रांसलेशन में करके उसको ट्रांसलेट करके दिखाया, और कुछ कैरेक्टर्स के मैं नाम बताऊं, जैसे एक कैरेक्टर था तुरगुल, उसका नाम उन्होंने नूरगुल कर दिया। एक कैरेक्टर था बामसी, उसका नाम बाबर कर दिया। एक कैरेक्टर थी शलजान, उसका नाम शहनाज खातून। तो ये जो इस तरह की चीज़ें जो हमारे उर्दू राइटर्स या ट्रांसलेटर्स हैं, क्योंकि ट्रांसलेशन का भी इसमें बहुत बड़ा उर्दू कंटेंट प्रोवाइड करने में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत अहमियत है। वो सीरियल यूट्यूब पे हो, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन गलत ढंग से किया गया, उससे क्या होता है कि जो व्यूअर्स, जो कंटेंट इतना रिच प्रोवाइड किया गया था, जो बना था, उसकी असली शक्ल जो है वो ख़त्म होगी। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमें देखने हैं कि क्या ऐसा कोई कंटेंट हो जो कि हम ऐसा बना सकें जो सब में पॉपुलर हो। एक वक्त हुआ करता था कि द सोड ऑफ टीपू सुल्तान, अकबर दी ग्रेट, गुलफाम, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स थे उर्दू के जो बड़े पॉपुलर हुए, लेकिन इधर आने वाले, मैं कहूँ कि ईटीवी उर्दू में काफ़ी दिनों तक था, काफ़ी सीरियल्स बने, फिर जी सलाम आया, लेकिन वो लोगों की जो होता है ना कि आई बॉल्स, लोगों को अपनी तरफ रागिब नहीं कर सका। तो हमें ये सोचना है कि जो उर्दू के राइटर्स हैं, नॉवेलिस्ट हैं, कि किस तरीके हमारे अंदर कमियां क्या रह गई हैं। वही कुछ दिनों पहले एक जिंदगी का एक चैनल आया, उसके पाकिस्तानी सीरियल से बड़े पॉपुलर हुए, लेकिन उर्दू जो टीवी चैनल्स हैं वो न्यूज़ के अलावा जो कंटेंट है वो पॉपुलर क्यों नहीं हो पा रहे, उसकी क्या वजूहात हैं। तो ये उर्दू राइटर्स तय, हमें ऐसे उर्दू राइटर्स को क्रिएट करना है, बनाना है कि वो हमारे जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। भी लगा लेना था हमारे इसमें रहता होगा वो बोलते पूरे एक कमेंट मारते ना बैठ के। हेलो, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम इस तरह के जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसके लिए हम कंटेंट क्रिएशन किस तरीके से करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंच सकें, और
कोई भी मीडियम, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम हो या सोशल मीडिया हो, उसके लिए अहमियत होती है जब तक आप मैसेज तक नहीं पहुंच सकेंगे, आम जबान में अपनी बात नहीं समझा सकेंगे, तब तक वो मीडियम पॉपुलर नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी है कि ऐसे राइटर्स को पैदा करना जो आम जबान में लोगों तक अपनी उर्दू जबान को पहुंचा सकें, उसकी मकबूलियत कायम करा सकें, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को किस तरीके से, आज की टेक्नोलॉजी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से कैसे मैच होगी, उसका जो भी है हमें दोनों एक अच्छे ढंग से हमें उस पर रिसर्च करके कोशिश करनी होगी कि उसमें गैप ना रह पाए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी और कंटेंट में गैप रहता है तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए नुकसानदेह चीज होती है। जो मैंने बताया कि हैरतुल गाजी में किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी सही से नहीं हो इस्तेमाल होने की वजह से, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत सारे जराए भी दिए हैं। ओके, मैं लास्ट में अपनी बात खत्म करते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे किसी ने खूब कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने, एक पोएट थे और क्रिटिक, कि जर्नलिज्म इज ए लिटरेचर रिटन इन हरी। तो जो कंटेंट है उर्दू का, जो पर्टिकुलरली न्यूज़ कंटेंट है, वो बहुत जल्दी में लिखा जाता है, लेकिन आजकल कोशिश इस चीज़ की होनी चाहिए कि आपका कंटेंट बहुत कम अल्फाज में, जैसे ट्विटर है, उसमें आप 140 वर्ड्स से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, तो आपको वो वैक्यूबुलरी डेवलप करनी होगी, जो भी जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, कि उस मीडियम के तहत अपनी ज़बान को, अपने कंटेंट को आप उसमें डेवलप करके उसके हिसाब से चीज़ें देखें। बहुत ज़्यादा आप लिखेंगे, वही चीज़ें रिपीट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। हमेशा कुछ नया और कुछ नए ढंग से, और मुझे लगता है कि अब जो ज़बान का मसला उतना नहीं रहा, क्योंकि अब ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं कि आप किसी दूसरी ज़बान को ट्रांसलेट कर लेते हैं अपने, आप चाहते हैं आप बोलते हैं, वो उर्दू में रस्मुल ख़त में भी वो चीज़ आ जाती है, आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो ये मसला नहीं रहा कि आपको रस्मुल ख़त के लिए बहुत दिक्कत होगी, वो ऑलरेडी मशीन से आप कर सकते हैं, ऑडियो रिकॉर्ड करके आप उसको सही तरीके से आप बना सकते हैं, लेकिन वैक्यूबुलरी, डिक्शनरी, सही उसका इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का, कंटेंट डेवलपमेंट, और लोगों को किस तरीके से हमें, जी ठीक है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं, और एनसीपीओल के सभी ऑर्गेनाइजर्स और खासकर डायरेक्टर अकील अहमद साहब और प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब, कलीमुल्लाह साहब, फैयाज साहब, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। जी सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब, डीन स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आप अपना मकाला पढ़ने के बजाय बहुत कारामद बातें की, प्रैक्टिकल बातें बताई कि हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के ज़माने में मुसन्निफ़ीन की क्या जिम्मेदारियां हैं और हमें कौन से स्किल्स अपने अंदर पैदा करना चाहिए। इस बात के लिए प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छी कारामद मालूमाती गुफ्तगू की। ख़वातीन हज़रात, इस 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार के इस तीसरे इजलास की सदारत मोहतरम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेबली साहब फरमा रहे हैं। 5 मकालात पढ़े गए और प्रोफेसर मोहम्मद जमा अर्जुर्दा साहब का वो कलीदी खुतबा जो कल हम पूरा नहीं सुन सके थे, वो उस खुतबे का हिस्सा सुना। मोहतरम डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब, डायरेक्टर कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान, हमारे साथ कनेक्टेड हैं, हम देख पा रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो आइए अब एक ऐसी अजीम शख्सियत जो जिसने अपना सफ़र कभी तिरुपति, कभी मद्रास यूनिवर्सिटी, कभी हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सदर शोबे उर्दू की हैसियत से, और फिर एक बहुत तारीख़ी काम कर्नूल आंध्र प्रदेश में डॉक्टर अब्दुल हक उर्दू यूनिवर्सिटी के बानी वाइस चांसलर की हैसियत से अपने खिदमात अंजाम देने वाले मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, शायर, रजीम, नक्काद, वो मामला पोइट्री का हो, लिंग्विस्टिक्स का हो, रिसर्च मेथडोलॉजी का हो या क्रिटिसिज्म का हो, अपनी अनमिट छाप छोड़ने वाली शख्सियत परम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेबली साहब की है। आप सब वाकिफ़ हैं उनके कारनामों से। हफ़ी जालंधरी पे उनकी किताब हो, फ़न शख्सियत हो, या उर्दू गज़ल का इस्तिआराती निज़ाम हो, कहकशां हो, प्यास हो,
ताबिश फ़िक्र हो या नक्श नज़र हो, अपनी किताबों से एक बहुत खूबसूरत नक्श कायम किया है मोहतरम मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब। इतनी अच्छी नस्र लिखते हैं, उतनी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ आज के इस तीसरे इजलास के सदर अजीम शख्सियत, मोहतरम शख्सियत प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब से गुज़ारिश करता हूँ कि अपने सदारती कलमात से नवाजें। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, आपके सदारती कलमात के हम मुंतजिर हैं सभी। जी साहब, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साहब, बिल्कुल, हम आपको सुन रहे हैं साहब। ख़वातीन और हज़रात, प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब का सदारती कलमात हम सुनेंगे। मुज़फ़्फ़र शामिरी साहब से कहिए कि वो अपना माइक अनम्यूट करें। जब तक ये टेक्निकल काम हो रहा है, मैं अर्ज कर दूं कि 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार का ये तीसरा इजलास था, जिसमें 5 मकालात पढ़े गए और प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ुर्दा साहब का वो कलीदी खुतबा सुना। बिल्कुल मुज़फ़्फ़र साहब, आपकी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, हम सुन पा रहे हैं आपको। हेलो, जी शामिरी साहब, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन आप बीच बीच में म्यूट कर दे रहे हैं। माइक अनम्यूट कीजिए। शेमिरी साहब, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब अगर हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो मैं अर्ज़ करूं कि हम आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। सर, आप उसे म्यूट नहीं करें अपना ऑडियो वीडियो, और हम आपके सदारती कलमात सुनने के मुंतज़िर हैं। हमारी टेक्निकल टीम प्रोफेसर एमएन हुदा साहब से गुजारिश है कि ज़रा आप मदद कराएं अपने लोगों से, राब्ता कायम कर सकें प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब से। एहतशाम साहब, आप सुन पा रहे हैं हमारी आवाज़? शफी साहब, उनके नेटवर्क, उनके एंड पे नेटवर्क में ठीक करने की जरूरत है। जी जी जी, मदद मुश्किल दिख रही कि यहाँ से हम लोग करें। कोई लोकल स्टाफ जो उनके पास हो, वो उनका नेटवर्क ठीक कर दे तो वो फिर हमारे साथ करेंगे। जी हाँ, देखें वो प्रॉब्लम ये है कि शामिरी साहब अपने माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। आप अनम्यूट कर चुके हैं? उत्तम नहीं, उनका नेटवर्क भी कम है मुज़फ़्फ़र शामिरी साहब का। उत्तम जरा वो अनम्यूटेड है। अगर वो चाहे तो अपना वीडियो बंद करके भी बोल सकते हैं। अगर वीडियो बंद कर मैं देख रहा हूँ भी ऑन और ऑडियो भी। क्या बात, दोनों सर उनके एंड से शायद कुछ नेटवर्क इशू है। नहीं, अब म्यूट कर दिया। जब तक वो तकनीकी काम कर रहे हैं, मैं अर्ज कर दूं कि इसके बाद जो 2 सेशन होने हैं, चौथा और पांचवा सेशन, उसकी सदारत प्रोफेसर साहब और मोहतरम प्रोफेसर अनवर पाशा साहब फरमाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद काजिम और डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब बात करेंगे। उन दोनों सेशन को आप अपनी नीयत को यकीनी बनाएं। अभी जो ये तीसरा इजलास हुआ, जिसमें 5 अहम मकालात पढ़े गए, डॉक्टर अब्दुल समी बुबेरे साहब, प्रोफेसर मोहम्मद गुलाम रब्बानी साहब, प्रोफेसर गयासुर रहमान सैयद साहब, जनाब दोस्त इब्राहिमोव साहब और प्रोफेसर एहतशाम खान साहब ने अपने पुरमग़ज़ मकाले पढ़े, अपनी तकरीर की। और अब हम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब से सदारती तकरीर सुनेंगे। ख़वातीन हज़रात, मेरा ख्याल है कि हम प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शेमिरी साहब तक पहुँच चुके हैं
और वो चंद लम्हों में अपनी सदारती तकरीर से नवाजेंगे प्रोफेसर मुजफ्फर शहमेरी साहब। मेरी डॉक्टर अब्दुल हक शफी साहब मेरी आवाज़ है? जी साहब, हम आ रही है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर बेहतर साहब, तीन साहब, जनाब कलीमुल्लाह साहब, काउंसिल के मुअज़्ज़ज़ अरकान, दीगर मकामी निगरान, ख़वातीन व हज़रात और आज के नाज़िम इजलास शफी अय्यूब साहब, सबसे पहले तो मैं अपनी जानिब से तमाम मकाला निगारान की खिदमत में हदिया तबरीक पेश करूँगा। मैं बहुत जल्दी दो एक बातें अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहले तो यह है कि अब्दुल समी साहब की बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुनज़्ज़म कोशिश की ज़रूरत है। ये तमाम मकालों में बात कहीं ना कहीं उभर कर आ रही थी कि एक बिगड़ा हुआ निज़ाम है, उसको हमें एक निज़ाम की ज़रूरत है और एक मुनज़्ज़म निज़ाम पेश करने की हमें ज़रूरत है। कुछ यही बात आज़ुर्दा साहब ने भी कही कि मनफी इस्तेमाल के इस दौर में, मेरी बात आ रही है सर? जी हाँ, हेलो जी आप कंटिन्यू करें, हम सुन रहे हैं आपको। जी, हम आपको तो सुन रहे मनफी हैं। हाँ, आज़ुर्दा साहब ने ये बात बड़ी अच्छी कही कि इस्तेमाल के इस दौर में हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं और यही चीज़ हमारे अब्दुल रहमान सैयद साहब ने कही, कुछ उसूल और ज़वाबित की भी बात की उन्होंने, बहुत ज़रूरी है। और आखिर में एहतशाम साहब ने अखलाकियात की बात जो उठाई है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस बरक़ी मीडिया में एक मरकज़ की ज़रूरत है, एक ज़रूरत है जहां हम इस निज़ाम को कायम रख सकते हैं। ये तमाम मकाला निगारों की मकालों से बात ज़ाहिर हो रही है और अब्दुल समी बुबरे साहब ने बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि मुनज़्ज़म कोशिश की हमें ज़रूरत है। हमें एक मरकज़ के क़याम की बारे में सोचना चाहिए। ये मुझे आज के मकालों का इस पे गौर करनी चाहिए। कौमी काउंसिल को भी या दीगर लोग हैं कर सकते हैं। एक हम अंजुमन भी कायम कर सकते हैं, अंजुमन मुसन्निफ़ीन बरक़ी मीडिया वगैरह, इस कोई अंजुमन कायम करके हम, जैसा कि हमारे अब्दुल रहमान गयासुर रहमान सैयद साहब ने कुछ उसूल और ज़वाबित बयान किए थे, उन सब की रोशनी में कि हमें क्या लिखना चाहिए, कैसा लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, इस सब की रोशनी में हमें एक बहुत ही अच्छा मरकज़ कायम करना चाहिए अगर हमें उर्दू मुसन्निफ़ीन को आगे बढ़ाना चाहते हैं या उर्दू ज़बान और अदब को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरी पहला नुक्ता तो मेरा ये है। दूसरी बात जो मुबेरे साहब की मुझे पसंद आई और वो है उनकी कि हफ्ते में 2-1 रोज़ सिर्फ उर्दू का कोई प्रोग्राम पेश किया जाए। 2 रोज़ ना सही, कम से कम हफ्ते में 1 रोज़ मुकम्मल कर सकते हैं। अगर कौमी काउंसिल इस खर्च को बर्दाश्त कर सकते हैं तो एक दिलकश प्रोग्राम पेश किया जाए। ये अब्दुल समी बुबैरा साहब की मैं इस तजवीज़ से इत्तेफाक करता हूँ। गुलाम रब्बानी साहब ने जो बांग्लादेश का जो पस मंज़र पेश किया उसके लिए शुक्रगुज़ार हूँ, लेकिन उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, वो है कि हम आइंदा नस्ल तक ये लेके जाएँगे। जब तक हम की तरह के बारे में सोच भी नहीं सकती। गुलाम रब्बानी साहब के अंदर जो हमारे अंदर होने चाहिए। सैयद साहब ने अभी एक बात बताई, लेकिन एक और बात अर्ज़ कर रहा हूँ, रद्द अमल की बात वाक़िअतन बहुत ही अहम बात रख रहे हैं, लेकिन पता ही नहीं चल रहा है कि बात किसी की तक पहुंची है या नहीं पहुंची है, या क्या तनकीद हो रही है, क्या नुक्ताचीनी हो रही है, इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। उन्होंने बताई है, लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इसमें तरबियत ज़ौक़ की बड़ी ज़रूरत है। वरना होता है कि मैं फेसबुक पर ठीक है, माशाअल्लाह, क्या ज़ौक़ का अगर कुछ एहतमाम में हम काम कर सकते। तो ये आज़ुदा साहब ने एक और बड़ी अच्छी बात खलवत में जलवत और जलवत में खलवत वाली बात की, और ने इस्तिलाहों की बात उठाई है। लंबी बहस है वो कि हम साइंसी इस्तिलाहें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या जू का तो इस्तेमाल करें
बहुत सारे सवाल उसमें उठते हैं कि भाई तर्जुमा अगर करते हैं तो कौन करेगा, कहाँ करेगा, एक मरकज क्या है, हम इस तरह की बात हो सकती है, क्या जूम का तो इस्तेमाल करें कि उसका मफाद कितना है, ये सब चीजें इस पर एक बाकायदा एक वेबिनार बड़े ग्लोबलाइजेशन में ज़बानें खत्म होती जा रही हैं, उनकी बात इस पर भी हमें खास तवज्जो देनी चाहिए। हमारे एहतशाम मोहम्मद साहब ने अखलाकियात पर जोर देने वाली बड़ी अच्छी बात उठाई है, मगर उसके साथ साथ उनकी एक बात उन पर मैं कुछ कहना चाहूँगा, और वो ये है कि हमारा जो कंटेंट क्रिएशन है वो बिल्कुल वही है, तो तकरार किया हुआ वही चीज़ें चबे चबाने वाले हों तो उससे बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल सही उन्होंने कहा। देखिए, मेरा अपना ख्याल कि आज कहानी कहने का तरीका बदल चुका है, आज ड्रामा का पेशगी का तरीका बदल चुका है, और हमारे पास जो इस वक्त जो स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है वो स्क्रीन प्ले बिल्कुल अलग है जो हमारी रिवायती फिल्मों का, रिवायती कहानियों का, रिवायती इसका है। हमें इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा तरबियत की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा हमें तख्लीकियत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा कि नयापन चाहिए, तो ये चीज़ जब तक नहीं होगी वो होगा कि ये सारी चीज़ें हमारी खत्म होगी। मैं आखिर में सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहूँगा, और वो ये कि हमारी उर्दू मुसन्निफीन पर 3 तरह की जिम्मेदारियां आयद होती हैं। एक कि हम लिसानी वर्से को बचा रखें, जिसमें ज़बान है, मुहावरे हैं, ज़रबुल अमसाल है वगैरह। दूसरा अदबी वर्सा है। अच्छा, अदबी वर्से के लिए देखिए, मैं एक बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही बोबेरे साहब ने, कि जो लोग उर्दू पढ़ नहीं चाहते हैं, पढ़ नहीं सकते हैं, वो लोग उर्दू सुन सकते हैं। ये मीडिया का बहुत बड़ा कमाल है। अगर हम ऐसे तराशे अबुल कलाम आज़ाद के हों या मेहदी इफादी के हों या किसी और के हों, और ऐसे दानिशवाराना अक़वाल है जिसको अगर हम पेश करते रहें, ऐसे अशार जो बहुत बामाने अशार हैं, उन तमाम अशार को अगर हम मीडिया में लेकर आते हैं तो उर्दू की बहुत बड़ी खिदमत हो सकती है। तो ये उर्दू लिसानी खिदमत होगी, अदबी खिदमत होगी, तो इसी तरह उर्दू तहजीब की। आखिरी बात याद कर दूँ शफी साहब, मैं ये अर्ज करूँ कि हर नई नस्ल पुरानी नस्ल से कम 70-80% अपना वर्षा जो होता है वो छोड़ देती है। वो अब हमारा यह फर्ज बनता है कि उस वर्षे को हम नई नस्ल तक पहुंचाएं, वरना हम बहुत दूर हो जाएंगे। वक्त नहीं है, वरना कुछ और बातें। मैं फिर एक मरतबा खास तौर पर आपका और तमाम काउंसिल के मुअज़्ज़िज़ अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेहद शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमेरी साहब, आपने बहुत खूबसूरत, बहुत मानेखेज़ गुफ्तगू की और इसको दरिया में कूज़े में बंद कर दिया। दरिया को आपने बहुत ही जामे सदारती तकरीर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र शहमेरी साहब की हमने समाअत की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब इत्मीनान की सांस ले रहे होंगे कि वक्त से ये सेमिनार का ये इजलास अपने अख्ताम को पहुँचा। ख़वातीन और हज़रात, 2 रोज़ा आलमी उर्दू वेबिनार का आगाज़ कल हुआ था। वज़ीर तालीम मोहतरम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक साहब ने किया। उनके बाद प्रोफेसर शाहिद अख्तर साहब और डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब की गुफ्तगू हुई थी। आज के इस वेबिनार के तीसरे इजलास में, जो कि मोहतरम मुज़फ़्फ़र शहमेरी साहब की सदारत में मुनक़िद हुआ, 5 अहम मक़ालात पढ़े गए। अब्दुस्समी बुबेरे साहब, मोहतरम प्रोफेसर मोहम्मद ग़ुलाम रब्बानी साहब, जनाब एल्दोस इब्राहिमोव साहब, प्रोफेसर ग़यासुर रहमान सैयद साहब और प्रोफेसर एहतशाम अहमद खान साहब ने अपने मक़ालात पढ़े। प्रोफेसर मोहम्मद जमा अज़ूरदा साहब की खिलती खुतबा का कुछ हिस्सा हमने आज सुना। ख़वातीन और हज़रात, मैं अपनी जानिब से NCPL की पूरी टीम का, प्रोफेसर MN साहब का, डॉक्टर कलीमुल्लाह साहब, डॉक्टर शमा कौसर यज़दानी साहिबा, डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब का चेहरे पर नूर हमारे सामने है। ये सेशन अपने ख़त्म को पहुँचता है और इत्तलान अर्ज़ है कि 2 सेशन और होने हैं। इसकी सदारत मोहतरमा प्रोफेसर अज़रमी दोस्त साहिबा और मोहतरम प्रोफेसर अनवर पाशा साहब फरमाएंगे। ये दोनों सेशन डॉक्टर मोहम्मद आज़िम साहब और डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब इसकी निज़ामत करेंगे और 5-5 मक़ालात इसमें पढ़े जाएंगे। क्या डॉक्टर शेख अकील अहमद साहब कुछ कहना चाहते हैं या इख्तिताम का ऐलान आप फरमा दें तो अच्छा रहेगा? डॉक्टर शेख साहब, डायरेक्टर NCP। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं शफी अयूब साहब कि आपने बहुत ही कामयाबी के साथ
इस सेशन का इख्तिताम किया और तमाम मकाला निगार हजरात वक्त पे मकाला पेश किया और ये एक कामयाब सेशन रहा। और इस सेशन में जो जो मशवरे दिए गए हैं, मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप NCPVL डायरेक्टर के ईमेल एड्रेस पे अपने मशवरे लिख करके भी भेजें इस सिलसिले में कि उर्दू काउंसिल को क्या क्या करना चाहिए ताकि हम पूरी दुनिया के अदीबों को, उर्दू के अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकें या उनको एक किस तरह से एक प्लेटफॉर्म हम फराहम कर सकें और जिस प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से उनकी जो तख्लीक़ात है और उनकी जो शख्सियत है वो निखर करके सामने आए और वो अपना एक पहचान बना सकें। और साथ ही साथ क्या हमें करना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर उर्दू की भी अपनी एक पहचान बने और हम ये पूरी दुनिया के अदीबों को ये बता सकें कि उर्दू दुनिया के किसी भी अदब से कमतर नहीं है, उर्दू दुनिया के किसी भी ज़बान से कमतर नहीं है। और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम दुनिया के तमाम लोगों को उर्दू की तरफ राग़िब कर सकें, लोगों को हम मजबूर कर सकें कि वो उर्दू पढ़ना लिखना शुरू कर दें, उर्दू अदब से किस तरह से उनकी आशनाई हो, वो आशना हो जाएं। इन तमाम पहलुओं के ऊपर आप लोग सोचिए, मुझे मशवरे दें और मुझे बताएं कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। तो जो कुछ आप मशवरे देंगे और वो हमारे अगर दायरे इख्तियार में होगा तो मैं ज़रूर अमल करने की कोशिश करूंगा, और अगर मेरे दायरे इख्तियार में नहीं होगा तो मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं अपने वज़ीर तालीम से इस सिलसिले में बात करूं और मैं उनसे ये कहूं कि हमारे जो अदीब हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर, उनकी ये तजावीज़ हैं और इन तजावीज़ पे हमें अमल करने का इख्तियार दिया जाए और हमें सफिशिएंट फंड भी फराहम किया जाए ताकि मैं तमाम दुनिया के अदीबों को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकूं और उनके तख्लीक़ात को पेश करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर मैं कोई ऐसी तदबीर कर सकूं। तो आप तमाम ख़वातीन व हज़रात हाज़रीन का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ, शामिरी साहब का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। और मुझे खुशी है कि प्रोफेसर जमा अज़ुर्दा साहब ने अपना मकाला आज पेश किया। मुझे अफसोस है कि कल उनको मौका नहीं मिला था और इसीलिए मैं अब सोचने लगा हूँ कि अगर हाँ इनॉग्रल सेशन में अगर कोई बड़ी शख्सियत आ रही है, कोई मंत्री या वज़ीर आ रहे हैं, तो वहाँ वक्त की बहुत कमी हो जाती है। उनके पास जो है वो एक उनके अपॉइंटमेंट्स की एक लंबी फहरिस्त होती है। वो कहते हैं कि भाई हमें इतने बजे खाली हमें फ्री कर दो, मुझे ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है। तो बेहतर मुझे लगता है कि अब ये होना चाहिए कि इनॉग्रल सेशन में अगर कोई बहुत बड़ी शख्सियत आ रही है तो उस सेशन में हम की नोट एड्रेस नहीं रखें, बल्कि उसके नेक्स्ट सेशन में हम एक स्पेशल सेशन रख दें जिसमें सिर्फ की नोट एड्रेस ही सुनाया जाए। और ऐसा एक एक्सपेरिमेंट हमने किया भी था जब हमने दराशिको के ऊपर एक सेमिनार किया था और आज़र में दुख्त साहिबा का एक बेहद पुरमग़ज़, बेहद अच्छा एक मकाला था जिसे पढ़ कर के मैं तो मैंने ये सोचा कि इनके मकाले को अगर पूरी तरह से नहीं सुना जाए तो ये बहुत ही नाइंसाफ़ी होगी उनके साथ, और हमारे जो लिसनर हैं, हमारे जो शुरका हैं, वो भी महजूज नहीं हो पाएंगे, मुस्तफ़ीद नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने इनॉग्रल सेशन में किसी तरह का कोई की नोट एड्रेस या पेपर पढ़ने का इंतज़ाम नहीं किया था, बल्कि हमने एक स्पेशल सेशन किया था जिसमें आज़र में दुख्त साहिबा का पेपर पढ़ा गया था। मुझे लगता है कि कल मुझे यही करना चाहिए था और प्रोफेसर जमा अज़ुर्दा साहब का मकाला
کے لیے ایک الگ جو ہے سیشن ہمیں رکھنا چاہیے تھا اور اس میں ان کے مقالے کو سننا چاہیے تھا. جس پروگرام میں یا جس وہ انوگرل سیشن میں اگر کوئی بڑی شخصیتیں آتی ہیں تو سبھی لوگ انہی کو سننا چاہتے ہیں، لیکن بہت محنت سے اور بہت اعلیٰ درجے کے مضامین جو لکھنے والے حضرات ہوتے ہیں ان کی جو ہے وہ